I'm in Mitibai College. I'm chartered accountant. I'm a program in charge at Mitibai College in BCom Honors. I'm also a visiting lecturer in Institute of Chartered Accountant of India at WRC. And my lecture right now is live on my YouTube channel, Treasure of Accounts. On this channel, all accounts lecture right from FI BCom, SI BCom, TY BCom, Intermediate CA available freely. I'm holding a commerce degree, Bachelor of Commerce and LLB, law degree and commerce degree from Mumbai University. I'm also a chartered accountant. I'm also a cost accountant. I'm holding Master in Business Finance certificate from Institute of Chartered Accountants of India. I've got Diploma in International Financial Reporting System from SCCA UK and doctorate from Pune University. Now, my today's present talk is 7 simple ways for financial freedom. Remember, याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे को बहुत पैसा कमाना है या सब्सटेंशियल पैसा कमाना है is half sentence, incomplete sentence. In addition to earning money, we need to save, we need to invest. तो ये कैसे किया जाएगा? That's what we are going to learn today. All right. So हम आज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचने वाले हैं. कैलकुलेटर लेके हुए ये दिखाई दे रहा है, इज ट्राइंग टू मैच उसका इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट, struggling around to achieve the person his financial goals and objectives with whatever financial resources the person is going to earn. So investment planning is a core component of financial planning. All right. What this beautiful lady is thinking? ये beautiful lady क्या सोच रही है? What this beautiful lady is thinking? ये ब्यूटीफुल लेडी सोच रही है कि अभी तक मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी या ज्यादा करके लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन एडहोक मैनर, जैसे पैसा है वहां कहां ना कहां इन्वेस्ट कर दिया. विल दैट एडहोक मैनर इन्वेस्टमेंट हेल्प टू अचीव ऑल फाइनेंशियल गोल्स एंड फाइनेंशियल ड्रीम? क्या लग रहा है? एडहोक माने नॉट अ सिस्टमेटिक मैनर. द आंसर इज नो. तो क्या? So what next? Then we need proper financial planning. हम आगे देखने वाले हैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें कहां मदद करने वाला है. प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग विल हेल्प मी टू मैनेज माय डेब्ट एफिशिएंटली. प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग विल हेल्प मी टू लर्न द आर्ट ऑफ बजटिंग. Proper financial planning will throw out without my inefficient financial investment. My investment will be streamlined and I will be investing in the right financial product with a proper asset allocation, with proper issue. We will set up the smart financial goal and it will cultivate the habit of our regular saving and investment. Will create a blueprint for long-term financial goals. क्योंकि मुझे 45 मिनट्स में ये कवर अप करना है तो surely I'll be going bit speedily manner. All right. So अभी हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास 7 simple steps to create wealth and financial freedom. हम एक के बाद एक देखेंगे वो 7 simple steps क्या है. Starting from saving, loan, insurance plan, investment plan, tax plan, retirement plan, estate plan. So investment plan, tax plan, retirement plan, estate plan. So सबसे पहले चलते हैं सेविंग. सेविंग माने ऐसा नहीं पैसे बचाना, हम उसे सेविंग नहीं बोलते हैं. सेविंग डज नॉट हियर आई मीन बाय पैसा जो मैंने कमाया थोड़ा बचा लिया, नहीं. यहां मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मेरी सेविंग की बात कर रहा हूं. दैट सेविंग इज नथिंग बट माय इमरजेंसी फंड. हमारे पास कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल है वो बाद में देखना है, लेकिन उसके पहले अप्रोक्सीमेटली
अंदाज से 3 to 6 मंथ का हमारा जो घर का खर्चा है उतना पैसा तो मेरे पास अवेलेबल रखना ही है. रिमेनिंग एक्स्ट्रा मनी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट. सो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ के जो हमारे घर खर्च के लिए पैसे हैं उतना तो हमारे पास कभी भी रखना है. कभी भी रखना है मतलब कहाँ रखना है? नॉट नेसेसरी कैश. यहाँ जो मैंने कैश वर्ड लिखा है वो जरूरी नहीं है करेंसी नोट्स. सिर्फ इसका मतलब ये है कि 3 to 6 मंथ के जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. आप देख ही सकते हैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में मेनी ऑफ अस डू नॉट हैव नॉर्मल इनकम जो हमारे पास होती है. तो यदि हमारे पास 3 to 6 मंथ जितना बफर बजटेड मनी हमने इमरजेंसी फंड में रखा है तो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस कम पड़ेगा. तो ये पैसा कहाँ रखना है? इट कैन बी इन कैश, बट ऑफ कोर्स रियली हमको करेंसी नोट में जरूरत नहीं है, बट बैंक एफडी में रख सकते हैं. भले बैंक एफडी पीरियड कौन सा भी हो, लेकिन हम कभी भी 3 to 6 मंथ का पैसा तो कभी भी उतना एफडी तोड़वा के ले ही सकते हैं. या तो फिर मनी मार्केट और लिक्विड म्यूचुअल फंड. ये क्या होता है मनी मार्केट और लिक्विड म्यूचुअल फंड? ये म्यूचुअल फंड ही है. मतलब हम पैसा मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ने जो आगे पैसे लगाए हैं वो शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट में लगाए हैं. सो म्यूचुअल फंड ने जो हमारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाता है. उस प्रकार के प्रोडक्ट में लिया है जिसमें मार्केट वैल्यू में ज्यादा बदलाव नहीं आता है. ये पैसा सेफ माना जाता है. और सपोज मुझे पैसा चाहिए तो मेरे म्यूचुअल फंड को सिर्फ इन्फॉर्म करना है, विद इन 48 आवर्स के अंदर पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे. तो ये जो कैश है या तो बैंक एफडी है या तो मनी मार्केट एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड है वो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है किसी भी प्रकार का खर्चा करने के लिए. तो यहाँ हमारा जो रिटर्न है वो डेफिनेटली लो होगा, लेकिन सामने रिस्क भी तो लो है. हमको ये लो रिस्क वाली सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है. ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? लो रिस्क सिक्योरिटी में हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. सो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज हमारा सेविंग्स हो गया. इसको हम लोग इमरजेंसी फंड में बोलते हैं. यदि मेरे पास 3 to 6 मंथ का पैसा एज ए इमरजेंसी पड़ा है तो मुझे एटलीस्ट 3 to 6 मंथ में नया इनकम नहीं भी आता है तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता. अब फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है लोन मैनेजमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने भाई लोन लिया है, सपोज somebody is youngster, maybe 30 years, 35 years, उसकी लाइफ की पहली लोन ज्यादा करके एक व्हीकल लोन होता है, मे बी 2 व्हीलर लोन होता है, नहीं तो 4 व्हीलर लोन होती है. ओके तो हम जो लोन लेते हैं मे बी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, वो जनरली हम 2 प्रकार में डिवाइड करेंगे, गुड लोन वर्सेस बैड लोन. गुड लोन हम किसको बोलते हैं कि वो लोन लेने पर हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन नहीं आता. सो यदि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो 9% है, 7-8% है, एटलीस्ट 9% से बिलो है, तो इट कैन बी वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए गुड लोन. दूसरा, गुड लोन शुड बी फॉर क्रिएटिंग नॉन डेप्रिशिएबल असेट. सो जो लोन मेरी असेट क्रिएट करती है और वो असेट की कीमत में घटाई नहीं होने वाली है और इंटरेस्ट भी महंगा नहीं पड़ता है, तो मैं उसे गुड लोन बोलता हूं. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड लोन इज अ हाउसिंग लोन. बेस्ट एग्जांपल. मैं 20 इयर्स 30 इयर्स की हाउसिंग लोन लेता हूं, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 9% में होने वाला है. नॉट ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 9% होता है, मैं जो ईएमआई भरता हूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एवरी 1 लाख के पीछे मैं अबाउट रफली 900 रुपीज का ईएमआई भरता हूं. वो 20 साल तक भरता हूं क्योंकि मैंने 20 इयर्स की लोन लिया है. भले मुझे 3-4 साल पर ईएमआई भरना भारी पड़ रहा है, लेकिन आफ्टर 4 इयर्स जब मेरी मनी इनकम बढ़ जाती है तो मेरा इंस्टॉलमेंट भरने में कोई कठिनाई नहीं आती है. सो व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी अराइजेस टू बाय द हाउस, और जब भी आज की डेट में मैं बोलता हूं हस्बैंड वाइफ की कंबाइंड इनकम, इफ बोथ ऑफ देम वर्किंग, कंबाइंड इनकम अराउंड 150 के आजू बाजू मंथली जाता है, थिंक ऑफ बाइंग द लोन. नंबर 1,
रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। नंबर 2, आप इन्फ्लेशन वगैरह ध्यान में रखते हैं तो इफेक्टिव कॉस्ट हार्डली 1-2% आती है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। नंबर 3, वो टैक्स एडवांटेज होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी वगैरह कंप्यूट करते हैं, बिजनेस इनकम वगैरह कंप्यूट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है। तो ओवरऑल आप देखा, नॉट ओनली दैट, हाउस का भी तो अप्रिशिएशन होता है। सो कोई मुझे पूछते हैं क्या इज इट वर्थ बाइंग द हाउस, तो आंसर इज यस। यदि आपकी हस्बैंड वाइफ की कंबाइंड इनकम 1,50,000 पर मंथ से ज्यादा बढ़ती है, एंड इफ यू डोंट हैव द हाउस, definitely it is worth buying the house by taking the housing loan. Housing loan is a good loan. Same way education loan is also a good loan. क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन के पीछे जो खर्चा करते हैं वो हमारा एक इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होती है। मैं तो बनिए के लेवल में बात करूं ना, तो हमारी कम्युनिटी में एक दुकान होना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो आई से अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिसिन या लॉयर या MBA और एनी टाइप ऑफ दिस, तो वो इट इज इक्वल टू वन शॉप। One professional degree is equal to one shop, and this is education is a non-depreciable asset. Interest rate highly effective होता है, and जो भी interest हम बैंक को भरते हैं वो भी tax deductible होता है। So housing loan and education loan I can classify in a good loan, but बाकी की जो लोन होती है जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड पर डिले पेमेंट करते हैं, तो हमारे को ऑलमोस्ट 2.5% to 3% per month, 36% इंटरेस्ट लग जाता है। कॉस्टलियर लोन फॉर फर्नीचर, ट्रैवल, पर्सनल लोन, वो सबको मैं बैड लोन मानता हूं। जब भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 12% लगता है, आई कॉल इट अ बैड लोन। पे ऑफ एज अर्ली एज यू कैन। In fact, before you start investing money elsewhere, you must pay off your bad loan which cost you more than 12% per annum as early as possible. So step 1 था 3 to 6 month का इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड में रखो। लिक्विड इंक्लूड कैश, लिक्विड म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी एंड गुड लोन। लंबे समय पर कोई हमको डिफिकल्टी नहीं होगी। जितना लोन का पीरियड लंबा होता है, गुड लोन का इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो सब काउंट करते हैं, असेट की वैल्यू बढ़ती है, काउंट करते हैं, तो इफेक्टिव रेट 0 या माइनस हो जाता है। बट बैड लोन शुड बी पेड ऑफ एज अर्ली एज वी कैन। तीसरा स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस। 3 प्रकार का इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एसेट इंश्योरेंस। यहां जो लोग भी मेरे साथ ये सुन रहे हैं, आज जुड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग मी, more than 50% of us have taken up the wrong insurance policy. मेरा और आप सबका बैड लक। लाल कलर में जो लिखा है पढ़िए, नेवर मिक्स अप इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्सअप मत करो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अरे भाई मैंने पैसे लगाया और मुझे ही वापस मिलेगा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद। जब भी मेरा पैसा मुझे वापस मिलता है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और मेरा पैसा मुझे ना मिलते हुए मेरे पीछे वाले को मिलता है, दैट्स अ प्योर इंश्योरेंस। तो याद रखना, नेवर मिक्स अप द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आपको लाइफ में सबको एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना होता है। ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई यदि मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूं तो टर्म इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ डेथ पर मिलता है। सपोज मैंने 25 इयर्स की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एवरी ईयर मैं प्रीमियम भरता हूं, मगर मैं 25 इयर्स तक मुझे कुछ नहीं होता है, तो मेरे पैसे गए, नो वरी, पैसे किसी को नहीं मिलेंगे, उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन सपोज मैं 25 साल तक पैसा भरा इंश्योरेंस का, पॉलिसी मैच्योर होके मुझे ही पैसा मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आपको वो वाली पॉलिसी, मनी बैक वाली पॉलिसी नहीं लेनी है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि वो टर्म इंश्योरेंस की जो पॉलिसी अमाउंट है मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं तो सिंपल बोलता हूं, मिनिमम 1 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए। लाइफ मैक्सिमम मे बी 60, 65, 70 इयर्स, जितना लंबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमको पॉलिसी का देते हैं वो ले लो। और प्रीमियम हमारा लोएस्ट होना चाहिए। ऑल अर्निंग मेंबर्स शुड बी इंश्योर्ड। याद रखना, पॉलिसी के लिए आपको क्या याद रखना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलिसी मे बी 1 करोड़।
मैक्सिमम लाइफ में भी 30 इयर्स, 35, 40 इयर्स की पॉलिसी, मतलब हमारी लाइफ 60, 65, 70 इयर्स हो तब तक, और प्रीमियम मिनिमम होना चाहिए। ये हो गया इंश्योरेंस के बारे में। मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल लेने वाला हूं कि टर्म इंश्योरेंस पर हमको कितना प्रीमियम लगता है। दूसरा, अच्छा, टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने बोला है, आपको इंश्योरेंस किसका निकालना चाहिए? अर्निंग मेंबर। हम सिर्फ इंश्योरेंस लेने वाला है, तो यदि कोई होम मेकर है, हाउसवाइफ है, उसका इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है, लेना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, नॉट द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ अर्निंग, नॉट द लॉस ऑफ लाइफ। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम प्रीमियम सबका लेना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ करके इमीडिएटली उसको पॉलिसी के अंदर रख लो, वो हमारे लिए एज फार एज पॉसिबल फ्लोटर पॉलिसी लेनी चाहिए। आज की डेट में बोले तो मिनिमम 5, 10, 15 डिपेंडिंग अपॉन अवर इनकम लेनी ही चाहिए। 10 लाख की फ्लोटर पॉलिसी लिया, उससे क्या फायदा होता है? सपोज हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स है, 2 चाइल्ड भी है, 6 जन आ गया है, फायदा ये हो गया है कि 10 लाख में जो भी आदमी बीमार गिरता है तो वो 10 लाख में से हम यूज करते जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली भाई बच्चे का 1 लाख, हस्बैंड वाइफ का 5 लाख, पेरेंट्स का 10 लाख, ऐसा लेने के बदले में सिंगल पॉलिसी कवरिंग एवरीबडी बट फ्लोटिंग मतलब मैक्सिमम लाइफ, मैक्सिमम अमाउंट फिक्स हो जाती है। विद इन दैट जो भी बीमार गिरता है हम उसको पैसा देंगे, सो दैट इंटरचेंजेबल मनी। सो आप हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सभी लोग की पॉलिसी लेना, फ्लोटर पॉलिसी लेना, असेट इंश्योरेंस। यदि हम लोग बिजनेसमैन है तो किसी भी हाल में दुकान का, स्टॉक का एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस पक्का निकालना चाहिए। यदि हम हाउस की बात करते हैं तो प्रिफरेबली हाउस होल्ड इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। जनरली हाउस का कुछ नुकसान नहीं होता है, बट द प्रीमियम इतना छोटा होता है कंपैरेटिवली कि इट इज वर्थ इंश्योरिंग द हाउस ऑल्सो। सो किसी भी हाउस हालत में हम लोग जब हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर सकते हैं तो वी शुड बी फुल्ली इंश्योर्ड। टर्म इंश्योरेंस फॉर लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरीबॉडी एंड असेट इंश्योरेंस। एक बार इंश्योरेंस है तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, द फैमिली इज वेरी हैप्पी। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस है तो यू विल गो टू द बेस्ट डॉक्टर फॉर मेडिकल केयर। अभी मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, मैंने कुछ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाली है कि यदि हमारी उम्र 25 साल की है और मैं से 60 इयर्स तक की प्रीमियम भरने वाला हूं, मतलब अप टू 60 इयर्स की लाइफ में इंश्योर करता हूं, यदि मैं टर्म इंश्योरेंस निकालता हूं तो मेरा मंथली प्रीमियम डिपेंड, अलग अलग कंपनी अलग अलग पॉलिसी देती है, अलग अलग बेनिफिट होती है, बट एवरेज प्रीमियम इज ओनली 800 to 1000 पर मंथ। सो 25 साल की उम्र में हम पॉलिसी निकालते हैं, इट विल कॉस्ट ओनली 800 और 1000 पर मंथ। यदि मेरी उम्र 35 इयर्स है, मैं टर्म पॉलिसी लेने जाता हूं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 1000, 1400, रफली मैं बता रहा हूं ये फिगर, पर मंथ। एंड 45 इयर्स में मैं 1 करोड़ की पॉलिसी लेता हूं तो 1500 पर मंथ। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, जरा अंदाज लगाना कि आप कितना प्रीमियम भर रहे हैं। आपने जो भी पॉलिसी मैक्सिमम लोगों ने निकाली है वो मनी बैक है, आपको पैसे वापस मिलेंगे, बट क्योंकि आपको पैसे वापस मिलेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट मिक्सड अप हो गया है, तो आपको जो पैसे वापस मिलेंगे बहुत लिमिट होगा, और यदि अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाता है तो पीछे वालों को भी जो पैसा मिलेगा वो पॉलिसी अमाउंट बहुत छोटी होगी। तो याद रखना, आप टर्म इंश्योरेंस निकालना, सपोज कोई आदमी महीने साल का से 30,000 रुपीज प्रीमियम भरता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मनी बैक में, तो हार्डली उसे कुछ 10-15 लाख की पॉलिसी आएगी। मगर वही 30,000 में यदि डिपेंडिंग अपॉन द एज वो टर्म इंश्योरेंस भरता है तो नॉट ओनली टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी 1 करोड़ की मिलेगी, बहुत सारा पैसा फिर भी प्रीमियम भरने के बाद बचेगा जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो 25 साल के बाद, 30 साल के बाद यदि मर जाते हैं तो घर वाले को 1 करोड़ पक्का है, आप करोड़पति तो बना ही देंगे घर वाले। यदि नहीं मरते हैं, हम जिंदा रहते हैं, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था बचे हुए प्रीमियम में से, उसमें से हमें 1 करोड़ से ऊपर मिलेगा। मतलब कि हमारा करोड़पति होना नक्की है। विथ अ स्मॉल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट भी 25-30 साल के एंड में जिंदा रह के या मर के करोड़पति तो होना ही है। मरता है तो घर वाला करोड़पति बनेंगे, जिंदा है तो हम लोग बनेंगे।
फोर्थ स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम काम की बात पर चलते हैं। पहला स्टेप इमरजेंसी फंड था 3 to 6 मंथ का, दूसरा था लोन मैनेजमेंट, तीसरा है इंश्योरेंस। मैं पहले ही बोला मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे 45 मिनट में ये प्रेजेंटेशन करना है एंड 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, वरना नॉर्मली मुझे स्लो और अच्छी तरह से करने के लिए इट रिक्वायर्स 1.5 hour फॉर एक्सप्लेनेशन, सो आई एम गोइंग फार। आप ये क्या लिखा है पढ़ रहे हैं? मैं तो पिक्चर देख रहा हूं, मेरा पैसा बढ़ रहा है, पिक्चर में देखता हूं मेरा पैसा बढ़ रहा है। सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट गोल होता है उसमें पैसा बढ़ाना होता है। तो हमारा जो गोल होता है, फाइनेंशियल गोल होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, जितना भी हमारा फाइनेंशियल गोल होता है वो हम शॉर्ट पीरियड गोल, मीडियम पीरियड गोल और लॉन्ग पीरियड गोल में ऐसे डिवाइड करते हैं। सपोज मुझे कुछ लेना है, कुछ गोल कमिटमेंट का है, वो 1 से 3 साल के अंदर है तो आई कॉल इट ए शॉर्ट पीरियड गोल। मुझे 8 या 10 साल के अंदर कुछ करना है, आई कॉल इट ए मीडियम। और सपोज मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, बट जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो हुआ नहीं है, उसका एडुकेशन की चिंता करनी है, उसकी मैरिज की चिंता करना है, तो आंसर है वो तो 25-30 साल के बाद की बात है। तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन आपको अभी से ही शॉर्ट पीरियड, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल का प्लानिंग करना है। देयर कैन नॉट बी वन प्लान फॉर। आप लोग जो लोग मेरे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं वो सब अलग अलग उम्र के हैं। यदि 30 इयर्स है तो आपका गोल अलग है, यदि आपकी उम्र 45 इयर्स है योर गोल इज डिफरेंट, 60 ईयर गोल इज डिफरेंट। बट ये जो मैं बोलता हूँ एक जनरल आइडिया तो आपको दे ही देगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करना है। देयर कैन नॉट बी वन प्लान फॉर ऑल। It depends on various factors, including risk bearing capacity. अरे भाई, कोई ज्यादा रिस्क लेने वाला है, कोई सेफ प्ले में मानता है, तो दोनों का फाइनेंशियल प्लान अलग होगा। इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अलग है, पीरियड अवेलेबल अलग है। जैसे कोई 60 इयर्स का है तो उसके पास 20 साल का ही प्लानिंग करना है, कोई 45 इयर्स है तो उसको और 35 इयर्स का प्लानिंग करना है, किसकी उम्र ही 30 है तो उसको 30+30 वर्किंग लाइफ का और उसके बाद रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है। सो गोल विल बी शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे विल डिपेंड ऑन अपर इनकम लेवल। ऑब्वियसली हमारी फैमिली की टोटल वेल्थ कितनी है, टैक्स लायबिलिटी भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। टाइम होराइजन मींस वही कितना टाइम अवेलेबल है फॉर शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड एंड लॉन्ग टर्म गोल। नंबर ऑफ अर्निंग, नॉन अर्निंग मेंबर कितने हैं। सो हम अभी जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बचा के पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी वन जनरलाइज्ड प्लान. It has to take into consideration various factors, including all this risk-bearing capacity, period available, income, total wealth, number of siblings in our family, and so on. अच्छा, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, मे बी शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए। हम आजकल इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं अभी कि इसमें से हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो बाद में बात करते हैं। पहला तो सपोजिंग आपके पास 10,000 रुपया भी है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर पे कैश में नहीं रखना चाहते हैं, या आपको मालूम है अभी नहीं चाहिए, 2 साल के बाद लगेगा या 10 साल के बाद लगेगा, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कहां कहां पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर, बैंक में एफडी कर सकते हैं, कंपनी में भी एफडी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में एफडी जानते हैं सब लोग, बैंक में सपोजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% होता है, तो कंपनी थोड़ा ज्यादा देती है, जैसे टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, सभी कंपनियां, बड़े बड़े हाउसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी उनकी कंपनियां एफडी लेती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 0.5%, 1%, 1.5% मोर देन द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होता है, पोस्ट ऑफिस में भी मंथली पैसा वापस मिलते हैं, वैसे स्कीम होती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, पीपीएफ, सबको ये पता होता है, जो भी पैसा कमाता है ना उनको ये पीपीएफ वर्ड पता है, क्योंकि वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें हम जो पैसा भरते हैं उसमें हमको टैक्स में बचत होती है। अच्छा, ये पीपीएफ में आज की डेट में अराउंड 8%, 7.9% पर एनम इंटरेस्ट जमा होता है, वो इंटरेस्ट पर भी टैक्स नहीं लगता। अच्छा, लेकिन ये लंबे समय के लिए, उसके पैसे 15 साल के बाद मिलते हैं। यदि मुझे पैसे पहले वापस चाहिए तो ओनली इमरजेंसी सिचुएशन में मिलता है, बट जनरल रूल ये है कि हम पैसे 15 साल के बाद वापस लेंगे, चाहे तो और 5 साल बढ़ा के 20 साल वापस लेंगे। लेकिन इसमें पैसा भरने के टाइम पर टैक्स में बचत होती है,
एवरी ईयर जो इंटरेस्ट मिलता है कोई टैक्स नहीं है, वो भी बचत, और जब पैसा वापस मिलता है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं। तो मोस्ट पॉपुलर स्कीम ऑफ सेविंग आज की डेट में, मोस्ट पॉपुलर। नॉट ओनली दैट, इसे गवर्नमेंट या और लोग भी अटैच नहीं कर सकते। सपोज किसी की परिस्थिति खराब हो जाती है, फिर भी ये पैसा आपका सलामत रहता है। फिर दूसरा है आरबीआई टैक्सेबल बॉन्ड। सभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा लेती है पब्लिक से, उसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मतलब सिंपल, आप किसी को पैसा दो, आपको लिख के देंगे, हाँ भाई हाँ तुम्हारा पैसा मेरे पास है। वो कागज का टुकड़े को सिंपल लैंग्वेज में बॉन्ड या डिबेंचर बोलो, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में। आपने किसी को पैसा दिया, उसने लिख के दिया, वो चिट्ठी अपने लिए बॉन्ड हो गई है, डिबेंचर हो गया, वो आदमी के लिए वो डेप्ट हो गया है, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो गवर्नमेंट भी हमारे से पैसा लेती है। यही डिबेंचर और बॉन्ड मैंने अभी अभी समझाया। आप गवर्नमेंट को पैसा दो, आप कंपनी को पैसा दो, वो हमको लिख के देंगे, वही हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज में डिबेंचर बॉन्ड हो गया। हम डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे सकते हैं, या तो मैं म्यूचुअल फंड इंटरमीडियरी को पैसा देता हूं, वो म्यूचुअल फंड आगे कंपनी में पैसा डालता है, तो उसे वाया म्यूचुअल फंड बोलते हैं। मीनिंग वही है, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो लोन है। नेशनल पेंशन सिस्टम, अरे भाई जो एम्प्लॉई है, कंपनी में काम करते हैं, दे मे बी कवर्ड बाय द कंपनी की या गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम। लेकिन जो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्होंने तो जब तक काम किया तभी तक ही कमाई है, काम करना बंद, कमाई बंद। तो हो सकता है, समझदारी तो इसमें है कि जब भी बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, बिजनेसमैन जब पैसा कमाते हैं वर्किंग लाइफ में, तब यदि वो नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 60 इयर्स के बाद उनको 40% पार्ट मनी लमसम में भी मिलेगा, पार्ट मनी एवरी मंथ की कमाई में भी मिलेगा। तो उसे बहुत सारा टैक्स का भी एडवांटेज है, और ये कंपलसरी बचत है हमारे लिए। जब तक एक जबरदस्ती नहीं होती है ना हमको भी काम करने के लिए, जल्दी से रेडी नहीं होती है। जैसे लॉकडाउन है, एक जात की जबरदस्ती है, हम घर पे बैठे हैं, अच्छी तरह से बैठे। सेम वे, यदि हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह में पैसा भरने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक जात की इनडायरेक्टली वॉलंटरीली जबरदस्ती हो गई है, तो हम पैसा रेगुलरली भरेंगे। तो नेशनल पेंशन स्कीम भी एक जात की बचत योजना है। इक्विटी, इक्विटी माने शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना। मैं डायरेक्टली टीसीएस कंपनी, इंफोसिस कंपनी का शेयर खरीद सकता हूं, उसे डायरेक्ट बोलते हैं। या तो मैं कोई इंटरमीडियरी म्यूचुअल फंड को पैसा देता हूं, वो कंपनी का शेयर खरीदते हैं, वो म्यूचुअल फंड है। जब मैं कोई कंपनी का शेयर खरीदता हूं, इनडायरेक्टली मैं वहां का मालिक बनता हूं, भले छोटा सा मालिक, पॉइंट का मालिक, बट मालिक ही बना। जबकि डिबेंचर में क्या होता है, हमने वो कंपनी को लोन दिया है। तो दोनों में ये फर्क है। वो कंपनी बंद हो जाती है तो डिबेंचर का पैसा पहले मिलेगा, वो कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर्स का पैसा तो कंपनी के पास बचा तो ही लास्ट में मिलेगा, वरना पैसा जाएगा। एंड लास्टली गोल्ड वर्सेस सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड क्या है, आई कम बैक टू इट, इसके ऊपर में वापस आएगा। एंड लास्टली रियल एस्टेट, अरे भाई हम ऑफिस में, घर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके पर भी मैं वापस आएगा। अच्छा, ये मुझे याद नहीं रखना है। सपोज मुझे याद रखना है ना, आप ध्यान से देखेंगे 1 to 7 और अदर से 1 to 6 और 7, 8, 9, 10 दो अलग पार्ट में करूं। 1 to 6 में क्या है, 7, 8, 9, 10 में क्या है, आई टेल यू क्या है। 1 to 6 में जो रिटर्न है, हमको जो मिलने वाला पैसा है, वो नक्की है, फिक्स्ड है, रिटर्न इज फिक्स्ड, न वो रिटर्न बढ़ेगा न वो रिटर्न घटेगा। सो हम उसे बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। 1 to 6 में मैं किसी को पैसा देता हूं से 100 रुपया, तो मुझे मालूम है वो मुझे सामने वाला आदमी पर ईयर 7 रुपया 8 रुपया देगा, माई रिटर्न इज फिक्स्ड। लेकिन 7, 8, 9 एंड 10 है, वो रिटर्न फिक्स्ड नहीं है। यदि हम लक्की रहा तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलेगा, यदि हम इतने लक्की नहीं है तो रिटर्न्स कम मिलेगा। सो हम उसे बोलते हैं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। सो बेस्ड ऑन रिटर्न मैं सभी इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन रिटर्न। ओके, बट कुछ बातें हमको बाहर कर देनी चाहिए, मतलब कि हमको ये बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्या, इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। यदि आप 25-30 साल की उम्र वाले सुन रहे हैं तो आप बहुत लकी है कि आप इस उम्र में ये ज्ञान ले रहे हैं।
यदि आप 60 इयर्स है आपका और मेरा बैड लक है कि हमको ये किसी ने अपनी 30 इयर्स की उम्र में बचाया नहीं है। इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जिस दिन से पैसा कमाया, जिस दिन से आपके पास कमाई का पहला रुपया हुआ, उसी दिन से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करो। डोंट इन्वेस्ट मनी यू विल नीड राइट अवे। जो पैसा हमको तुरंत चाहिए 2-4-6 महीने में, उसे इन्वेस्ट नहीं करना है। सपोज 2-4-6 महीने में बच्चे की शादी करवाना है या खुद को ही पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जो पैसा हमको चाहिए इमीडिएटली उसे कभी इन्वेस्ट मत करो। कैश रखो, बैंक में एफडी कर दो, बट उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। जो इन्वेस्टमेंट आपको समझ नहीं पड़ती है वहां इन्वेस्टमेंट मत करो। जैसे आगे मैंने जो 10 इन्वेस्टमेंट का नाम बताया उसमें मैंने आर्ट वर्ड नहीं लिखा। द मेनी पीपल दे इन्वेस्ट इन आर्ट ऑल्सो, बट मैं नहीं समझता हूँ आर्ट में इन्वेस्टमेंट। मैंने डायमंड नहीं लिखा क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ। मुझे डायमंड अच्छा लगता है सॉलिड रॉक, लेकिन मुझे नहीं मालूम है बेचने जाएगा तो खरीदेगा कौन और उसका भाव कैसे निकाला जाता है। So whatever you don't understand, don't invest. Of course, take the calculated risk. हमको रिस्क मैनेज करना होगा तभी तो रिटर्न्स मिलेगा। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। हमको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे थोड़ा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में रखेंगे, थोड़ा गोल्ड में रखेंगे, थोड़ा एफडी में रखेंगे। वी विल डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो टू मैनेज द रिस्क। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, डाइवर्सिफाई। ओके, और एक बात याद रखना, रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज गो टुगेदर। इसका मतलब क्या है, रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज गो टुगेदर? सपोज कोई टाटा कंपनी है या कोई गवर्नमेंट पे मुझे बॉन्ड में पैसा लगाना है, इंटरेस्ट मुझे वो 7% देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे 7% पर पैसा लेंगे मेरे से, मेरा पैसा एकदम सलामत है। टाटा कंपनी वाले बोलते मुझे 7% पर दो ना, मैं बोलेगा नहीं नहीं। टाटा वाला बोलता अच्छा 8%, मैं बोला अच्छा तू रख ले, मैं तुझे पैसा देता हूँ, गवर्नमेंट को नहीं देगा। बिरला वाला आया, बोलता मुझे 8% में दो ना, मैं बोला मैं नहीं देगा तुम्हें। अच्छा मैं 9% देगा, हाँ अच्छा ठीक है, टाटा के बदले बिरला तू रख ले। अंबानी आए, बोलता हमें दे दो ना 9%, हमने बोला नहीं नहीं तुमको तो 12% पर देंगे। अभी तक तो मैं उसको 12% पर इंटरेस्ट पर 12% पर पैसा दिया नहीं। उसके पहले कोई रियल एस्टेट बिल्डर वाला आया, बोलता है 12% पर मुझे दो ना, मैं बोलेगा नहीं तुम्हें तो हम 18% पर देंगे। अब आप ध्यान से देखा, गवर्नमेंट को मैं 7% पर दे रहा हूँ, टाटा कंपनी को 8% पर दे रहा हूँ, बिरला को 9% पर दे रहा हूँ, अंबानी को 12% पर दे रहा हूँ, बिल्डर को 18% पर दे रहा हूँ। कुछ समझ में आया? जहां मुझे रिस्क लगता है ना, वहां से मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। सो रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज टू गो टुगेदर। जो पैसा एकदम सेफ है, याद रखना वहां रिटर्न लोएस्ट होगा। जो ज्यादा रिस्क है, एक्सपेक्ट द हायर रिटर्न। सो रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज गो टुगेदर। लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आगे बताया था, इधर रिपीट करता हूं। डाइवर्सिफाई द एसेट एलोकेशन। मतलब वॉरेन बुफे क्या करते हैं पिक्चर में देखो, डू नॉट पुट ऑल योर बैग्स इन वन बास्केट। सपोज आज की तारीख में किसी ने अपना सभी पैसा शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में ही लगाया होगा, तो पता है वो तो रोता होगा। हाँ, जब शेयर मार्केट बहुत ऊपर है तो बहुत पैसा भी कमा लिया होगा, बट द ऑपोजिट, बाजार डूब गया तो वो खुद भी डूब गया। हम अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, हम अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग, बच्चे का मैरिज का प्लानिंग में इस प्रकार की रिस्क नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स हमको अपना जो असेट का जो बास्केट है, इन्वेस्टमेंट बास्केट है, पोर्टफोलियो है, उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। यदि किसी ने थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में रखा होगा, मानता हूं नुकसान होगा, बट उसके साथ में उसने थोड़ा पैसा गोल्ड में या तो गोल्ड बॉन्ड में लगाया है, तो पता है शेयर बाजार का नुकसान यहां भरपाई किया। शेयर बाजार का भाव 1/4 घट गया, लेकिन गोल्ड का जो बिस्किट का भाव है, 100 ग्राम का भाव है, जो 3 लाख रुपीस था, आज 4.5 लाख के आजू बाजू हो गया। More than 50% increment. That means diversify your portfolio. Asset allocation aims to balance the risk by dividing the asset among major category. Cash मतलब बैंक एफडी भी आ गया ना, पैसा सलामत है, रिटर्न लेस है, मतलब पैसा तो सलामत है। बॉन्ड, हमने कंपनी को लोन दिया, रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, रिस्क भी तो थोड़ा ज्यादा है। स्टॉक मतलब शेयर्स,
रिटर्न हाईएस्ट है, रिस्क भी हाईएस्ट है, गोल्ड, रियल एस्टेट। सो हमारे को जो असेट एलोकेशन करते हैं, सभी इन्वेस्टमेंट एक ही बास्केट में नहीं रखते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि ईच असेट हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। सभी असेट क्लास की रिस्क एंड रिटर्न्स अलग होती है, सो ईच वन विल बिहेव डिफरेंटली ओवर टाइम पीरियड। याद रखो, रियल एस्टेट का रिटर्न्स अलग है, गोल्ड का रिटर्न्स अलग है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का रिटर्न अलग है, लेकिन सामने रिस्क भी तो सबकी अलग अलग है। रिमेंबर द सेइंग, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो आपको ये पांच तो याद रखना ही है, कुछ भी हो जाए, इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, डोंट इन्वेस्ट ऑल द मनी व्हाट यू नीड राइट अवे, take the calculator is whatever you don't understand, don't invest, diversify the portfolio, don't put all the eggs in one basket। ये 50-30-20 रूल क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल रूल है। यदि मैं 100 रुपया कमाता हूं, अब पिक्चर देखिए, चित्र देखिए, क्या लग रहा है, पहली बास्केट में क्या दिख रहा है, एक थैला दिख रहा है, उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो हमारी नीड है, हमारी बेसिक नीड है, मतलब हमारा घर का भाड़ा, खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे का एजुकेशन, उसके बिना तो हमको चलेगा ही नहीं। सो हमारा 50% ऑफ द इनकम यहाँ जाता है। 30% वाली बैग देख के कुछ लगा, सिंपल बैग है कि थोड़ी फैंसी है? अच्छा, फैंसी बैग है, मतलब मॉल में से लिया होगा। अब मॉल में से लिया होगा तो अंदर क्या होगा, अच्छे कपड़े होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा। इकोनॉमिक्स वाले उसे वांट बोलते हैं, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, ये हम अगले मंथ खरीदी कर सकते हैं, उसके अगले मंथ भी खरीदी कर सकते हैं, बेसिक पर तो हमको करना ही पड़ेगा। और ये जो तीसरा है, जो जग है, उसमें डॉलर भी दिखता है ना, गोल्ड कॉइन भी दिखता है, ये हमारी बचत है, सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है। सो एकदम इंट्यूटिवली एक सिंपल तरीके से हम बोले, नॉन टेक्निकल तरीके से, कि हम 100 रुपया कमाते हैं तो 50 रुपया हमारा बेसिक में जाता है, 30 रुपीज वांट में रखो, जो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कम से कम 20 रुपए की बचत करो। अब मैं इसी को थोड़ा अलग बताता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं 100 रुपया मैं कमाता हूं तो पहले ही -20 कर दो, मतलब मैं मैथ्स की लैंग्वेज में तो बोलू 100 - 20 इक्वल टू 50 + 30, 100 - 20 इक्वल टू 50 + 30। मतलब जैसे ही मैं पैसे कमाता हूं एवरी मंथ, सबसे पहले बचत के और इन्वेस्टमेंट के पैसे बाजू पर रखो, और जो 80 रुपया बचा उसमें से आप नेसेसिटी और नीड के पर खर्चा करना। ऐसा मत समझना कि इनकम में से पहला खर्चा करेंगे, बचा वो बचा, नहीं, इनकम में से पहले जो बचत करना है वो बाजू पर रखो, बाद में बचा वो खर्चा करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। चलो, मेरे पास 20 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो मैं कहाँ रखेगा? तो जो मैंने बोला, एक तो इमरजेंसी फंड पहले ही रख दिया 3 महीने का, बाद में जो पैसा आज से 3 साल तक चाहिए मैं शॉर्ट टर्म बोलता हूँ, 10 साल तक चाहिए मैं मीडियम टर्म बोलता हूँ, 10 के बाद 25-30 इयर्स तक चाहिए उसे मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूँ। लेकिन याद रखना, 3 इयर्स, 10 इयर्स, 25 साल, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। व्हाट इज शॉर्ट term for one person may be a long term for other one and vice versa। बट ये जनरल रूल है कि जब वो पैसा मुझे 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर चाहिए ना, वहां आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा भूल जाओ। आप ध्यान से देखो, पिगी बैंक को भी है ना, मैंने अम्ब्रेला पहनाया है, मैं गीला हो जाएगा तो चलेगा, मेरा बचत के पैसे जो पिगी बैंक में है ना, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। दैट मीन्स शॉर्ट पीरियड में पैसे की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आई से सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट, रिटर्न्स कम होगा, चलेगा। सो जो पैसा मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए चाहिए, मुझे मालूम है अगले साल मेरे बच्चे के पीछे मुझे खर्चा करना है, उसके मेडिकल एजुकेशन के लिए, फॉरेन अब्रॉड एजुकेशन के लिए, मुझे मालूम है अगले साल बेटे की शादी करनी है, दैट मीन्स शॉर्ट पीरियड हो गया। शॉर्ट पीरियड में सेफ्टी ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न्स बाजू पे रखो, क्योंकि सेफ्टी ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कहाँ लगाएंगे? बैंक एफडी लगाओ, 1 साल के अंदर है तो, 3 साल के अंदर है तो कंपनी एफडी भी चल जाएगा, 3 साल के अंदर है तो एक बार कंपनी के डिबेंचर में भी चल जाएगा, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस में चलेगा, बट शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल शेयर मार्केट में नहीं चलेगा। गोल्ड भी नहीं चलेगा क्योंकि वहां भी रिटर्न्स बहुत ऊपर नीचे होता है। ना शेयर मार्केट चलेगा, ना रियल एस्टेट चलेगा, ना गोल्ड चलेगा। मैं बैंक एफडी, कंपनी एफडी, पोस्ट ऑफिस, मनी म्यूचुअल फंड पसंद करेगा, जहां मेरी सेफ्टी ज्यादा है। 1 से 3 साल के लिए है तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सपोज मेरे को 3 to 10 इयर्स चाहिए,
तो मुझे आज पैसा नहीं चाहिए, अप टू 10 ईयर्स चाहिए, अब मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मीडियम रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मेरा रिटर्न्स भी थोड़ा ज्यादा आएगा। अब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड में जाएगा, यहाँ रिटर्न कम है लेकिन पीरियड ज्यादा है, मैं 7-10 ईयर्स के लिए पैसा फिक्स हो जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड। मैं डायरेक्टली तो कंपनी के शेयर्स में नहीं खरीदेगा, लेकिन यदि मेरे पास 8-10 साल का पीरियड है तो जो इंडेक्स बेस्ड होता है, सेंसेक्स बेस्ड होता है, जैसे आजकल कुछ 30-31,000 चल रहा है, मुझे मालूम है 5-10 साल के बाद तो 35-37 होने वाला ही है, कुछ भी हो जाए, कोरोना आएगा उसका बाप आएगा, 10 साल के बाद तो शेयर बाजार बढ़ने वाला है। तो आई कॉल इट इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा, 10 ईयर्स तक का है। अभी भी मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं लगाएगा, कंपनी की एफडी में लगाएगा क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलता है। मैं कंपनी के बॉन्ड में लगाएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगा सकता हूं। दैट मीन्स जहां मुझे पैसा ज्यादा मिलने वाला है मैं वहां पैसा लगा सकता हूं। जस्ट एक मिनट। ऑलराइट, जहां मुझे पैसा ज्यादा मिलने वाला है वहां पैसा लगा सकता हूं। ये मैंने बात की 3 to 10 ईयर्स के लिए। सो 3 to 10 ईयर्स के लिए हम कहां बात करते हैं? रिजर्व बैंक के बॉन्ड, इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड, कंपनी की एफडी, कंपनी के बॉन्ड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड सो ऑन। जस्ट एक मिनट, किसी ने अपना स्क्रीन बिगाड़ दिया है, तो जस्ट ए मिनट, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे अंडू करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, किसी ने अपना स्क्रीन खराब कर दिया है। प्लीज इसको आप हाथ मत लगाइए स्क्रीन को, जो लोग भी हाथ लगा रहे हैं, जो लोग भी स्क्रीन को हाथ लगा रहे हैं, प्लीज डोंट टच द स्क्रीन। स्क्रीन को हाथ मत लगाइए। आई जस्ट कंटिन्यू 1 मिनट, किसी ने अपना स्क्रीन खराब कर दिया है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो याद रखना, शॉर्ट पीरियड के बारे में क्या बोला? सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न भूल जाओ। मीडियम, गो फॉर मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? सपोज somebody is of 30 years, तो उसको 25 साल के बाद अपने बेटे बेटी की शादी करनी पड़ेगी। 25 साल के बाद अपने बेटे के लिए मेडिकल एजुकेशन का पैसा लगेगा। 25 साल के बाद शायद उसका बच्चा अब्रॉड पढ़ने जाएगा, एंड उसका 25-30 साल के बाद टेक्निकली वर्किंग इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि खुद भी 60 इयर्स का हो जाएगा, तो रिटायरमेंट प्लानिंग करना होगा। सो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ 25 इयर्स, 30 इयर्स, इवन मोर देन 30 इयर्स, डिपेंडिंग अपॉन हमारी आज की एज क्या है। अब क्योंकि मुझे पैसा अभी नहीं चाहिए, 30 इयर्स के बाद चाहिए, तो पता है ये बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड है। इसके अंदर लाइफ, बिजनेस की लैंग्वेज में बोले तो बहुत चढ़ाव उतार आएगा। अरे भाई, सार्स भी आ जाएगा, स्वाइन फ्लू भी आएगा, और ये कोविड भी आएगा, और सब जाएगा भी, आके जाएगा भी। दैट मीन्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड, आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ देखिए, भले ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे शेयर मार्केट ऊपर थी, अब कोविड आ गया तो एकदम नीचे हो गई, वापस ऊपर जाएगी, वापस नीचे जाएगी। बट आप ट्रेंड देखिए, ये मेरा कर्सर देखिए, ये ट्रेंड देखेंगे तो ओवर 25-30 इयर्स ये कर्सर ट्रेंड इंक्रीजिंग है। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शेयर मार्केट बढ़ती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 25 इयर्स, 30 इयर्स रियल एस्टेट बढ़ता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 25 इयर्स, 30 इयर्स गोल्ड भी बढ़ता है। सो जब लॉन्ग पीरियड आएगा तब हमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट जहां हाई रिटर्न है, रिस्क बैलेंस हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉन्ग पीरियड, वहां इन्वेस्टमेंट करना है। बट अगेन हमने क्या नक्की किया है? भले हम रिस्क लेंगे, रियल एस्टेट की भी रिस्क लेंगे ना, शेयर मार्केट की भी लेंगे ना, गोल्ड की भी लेंगे, हमारा वो रूल नहीं भूलेंगे, डोंट पुट ऑल द एग इन वन बास्केट। मतलब हमारी सभी इन्वेस्टमेंट खाली शेयर मार्केट में नहीं होगी, खाली रियल एस्टेट या गोल्ड में नहीं होगी, क्योंकि हम बैलेंस करेंगे तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी, कहां सपोज उस वक्त शेयर मार्केट टूट गई तो मे बी गोल्ड चढ़ता होगा, रियल एस्टेट चढ़ती होगी। सो दैट ओके, तो अभी 30 इयर्स तक मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल तक करना है। पीपीएफ, एटलीस्ट पार्ट ऑफ द मनी में पक्का पीपीएफ में रखेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है।
पैसा भरने पर टैक्स की बचत होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स नहीं मिलता है, पैसा वापस मिलता है, नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट एवरीबडी मस्ट पुट स्मॉल मनी डेफिनेटली इन पीपीएफ। देन इक्विटी, क्योंकि मुझे 25-30 साल तक के लिए मुझे पैसा लगाना है, तो डेफिनेटली मैं पैसा शेयर मार्केट में भी डालेगा। यदि मैं खुद एक्सपर्ट हूं, चाहे तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं। यदि मुझे शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है, अच्छा है, आप म्यूचुअल फंड को दो, वो शेयर मार्केट के पैसा लगाएंगे। बिकॉज म्यूचुअल फंड हमारे जैसे सभी लोगों का पैसा लेती है, वो एक्सपर्ट भी अपॉइंट करती है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। वो एक्सपर्ट एमबीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो जानते हैं, वो स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमारे बिहाफ पर डिसाइड करते हैं पैसे कहाँ लगाते हैं। ऑफ कोर्स वो फीस लेते हैं, बट उनका अधिकार बनता है। बट ये म्यूचुअल फंड है, सो एवरेज इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड इज मच बेटर वे देन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड, बॉन्ड मतलब लोन देना, मगर अभी मैं जो लोन दे रहा हूँ कंपनी को या किसी गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपैलिटी को भी हम लोन दे सकते हैं, वो लंबे समय के लिए देते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। क्योंकि मेरा तो मुझे पैसा सब डिवाइड कर देना है, तो थोड़ा पैसा इस प्रकार की लॉन्ग टर्म लोन में भी देते हैं। कभी कभी हम उसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग टाइप की लोन होती है। रियल एस्टेट में हम घर खरीदेंगे, ऑफिस खरीद सकते हैं, इसके पर हम और डिस्कशन करेंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एटलीस्ट नाउ, अभी तक। सपोज मुझे कुछ रेंटल भाड़े की इनकम कमानी है। अब मुंबई में क्या, इंडिया में भाड़े की इनकम कमानी है तो कम से कम 50 लाख 1 करोड़ लगता है, ताकि मैं घर या ऑफिस खरीद के भाड़े पर वो इनकम कमाऊं। लेकिन सपोज मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो भाड़े की इनकम कैसे कमाऊं? इंडिया में पॉसिबल नहीं है, दूसरी जगह पर है पॉसिबल। कैसे? मेरे पास 1 लाख है, तो जिसके भी पास ऐसा छोटा छोटा अमाउंट है, वो सब मिलकर एक म्यूचुअल फंड को देता है। म्यूचुअल फंड वो भाड़े की असेट में पैसे लगाते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड खुद ही मॉल खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड किराए पर दिए हुए मकान खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं। सो म्यूचुअल फंड भाड़ा कमाते हैं, और फिर जिसने भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है उनको भाड़े की इनकम ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इंडिया में अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुए, बट लेटर ऑन होगा। बट दुनिया भर में सभी वेस्टर्न कंट्री में, वर्ल्ड ओवर, बड़े बड़ी मॉल जो है, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े भाड़े का अपार्टमेंट एंड कॉम्प्लेक्सेस, द ओन्ड बाय म्यूचुअल फंड। एंड सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ये हम देखेंगे क्या है। रियल एस्टेट, घर मकान, ये भी देखेंगे। सो पॉइंट ये है कि जब मेरे पास, अभी मैं किसका प्लानिंग कर रहा हूँ, 30 इयर्स तक का प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरी उम्र 30 इयर्स है, तो इनफैक्ट मुझे तो 50 साल का प्लानिंग करना है। 30 + 30 काम करने की उम्र प्लस 20 साल आगे। यदि मैं खुद ही आज 40 साल का हूं, तो मुझे नेक्स्ट 30 इयर्स का प्लानिंग करना है। सब मेरे पास बड़े समय का प्लानिंग करना है, तो मेरे को लंबे समय के लिए जाना है। मैं थोड़ा रिस्क भी लेने वाला हूं, मैं थोड़ा रिटर्न भी ज्यादा कमाने वाला हूं। कुछ और बातें इसके अंदर करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है वो फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा ही है। डायरेक्टली मैंने बोला शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम एक्सपर्ट नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड आगे पैसा लगाएगा। अब क्वेश्चन है, मुझे शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाना है? तो पहले बोला है ना, सब पैसे तो कभी नहीं लगाना है। हाँ, जब मैं यंग हूं तो मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, मैं ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में डालता हूं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है ना, मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी घटती जाती है। सपोज मैं 25-30 साल का हूं ना, हो सकता हूं सब पैसा शेयर मार्केट में डालेगा। लेकिन यदि मैं 60 साल का हूं, 60 इयर्स का हूं, एंड इफ आई पुट ऑल द मनी इन शेयर मार्केट एंड इफ आई लूज, तो मैं तो कंगाल हो जाएगा, बाद में कमाने की क्षमता नहीं हो। सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शेयर मार्केट का एक्सपोजर घटाना चाहिए। बट एक थंब रूल, एक जनरल रूल बोल सकता हूं, 100 माइनस योर एज, उतना पैसा शेयर मार्केट में डालो। मतलब 100 में से आपकी उम्र माइनस करो, जो बचा ना उतना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में डालो। कोई 30 साल का आदमी है, ज्यादा रिस्क ले लो ना, बहुत साल है, कमाएंगे और डूब गया तो 100 - 30, वो अपना इन्वेस्टमेंट का 70% शेयर मार्केट में डालो। सपोज किसकी उम्र 40 है, 100 - 40, 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करो। किसकी उम्र 50 है, 100 - 50, ओनली 50% डालो। किसकी उम्र 60 है, 100 - 60, 30-40% शेयर मार्केट में डालो। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये परसेंटेज घटाना है। बट ये कोई साइंस वाला रूल नहीं है, अगेन इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, एंड उसका जब तक टोटलिटी ऑफ प्लानिंग ना करे, तब तक हम नहीं देख सकते कि पैसे कहाँ ना लगाना चाहिए। जितना पैसा शेयर मार्केट में लगाया वो छोड़ के बाकी का सब अदर असेट क्लास में डिवाइड करना है। बट जनरल रूल ऑफ थंब, लॉन्ग टर्म है तो आपको रिस्क ज्यादा लेनी है,
क्योंकि एक पीरियड की रिस्क दूसरे पीरियड में कवर अप हो जाती है, एंड जब भी हम ज्यादा रिस्क लेने वाला है हमारा रिटर्न्स भी ज्यादा होने वाला है। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी 2-3 पॉइंट की बात करते हैं, खाली लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म है तो गो फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न। एक है फिजिकल गोल्ड, एक है गोल्ड बॉन्ड। ये जो दिख रहा है वो गोल्ड की बिस्किट है, आप पैसा लगा सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड, तो पैसा बढ़ता है। अभी आप देख सकते हैं ना, शेयर मार्केट डूब गया, गोल्ड का 100 ग्राम का बिस्किट का भाव 4.5 लाख हो गया। इसी का जस्ट एक आध साल पहले 3 लाख के आजू बाजू था। 50% इंक्रीज इन 1 ईयर। बट ये हो गया फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में कुछ समस्या है। समस्या नंबर 1, हमको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। बहुत टेंशन हो जाता है। हम गोल्ड तिजोरी में रख के, घर बंद करके, कबाड़ बंद करके जाते हैं, बाहरगाम जाते हैं ना, तभी भी टेंशन रहता है घर पे कुछ हुआ है कि नहीं। बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है, फिर भी हमको टेंशन हो जाता है। ये हो गया गोल्ड। उसके बदले में हम गोल्ड बॉन्ड लेते हैं। ये गोल्ड बॉन्ड क्या है? सॉवरिन माने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। गोल्ड बॉन्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल सिंपल, सपोज मुझे आज गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्टमेंट करना है तो 4.5 लाख 4.5 लाख की बिस्किट आएगी। उसके बदले में गवर्नमेंट को 4.5 लाख रुपया रोकड़ा चेक से दे देता हूं। ठीक है, उसका मतलब ऐसे समझो आपकी एक बिस्किट आ गई है, बट आपके पास बिस्किट नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। उसने कागज पर लिख के दिया, हाँ भाई हाँ तुम्हारे एक बिस्किट है। 10 साल के बाद मुझे बिस्किट बेचना है, फिजिकल बिस्किट है, भाव 6 लाख था तो मैं 6 लाख में बेच देगा। मगर गवर्नमेंट ने कागज का टुकड़ा है, वही कागज में बेच सकता हूं, तो भी मुझे 6 लाख वापस आ जाएगा। दैट मीन्स मुझे फिजिकल गोल्ड जो संभालना है वो टेंशन नहीं रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गोल्ड जब तक फिजिकल मेरी तिजोरी में है ना, वो खुद कोई कमाई नहीं करता है। खाली जो भाव बढ़ता है वो तो बढ़ता है, बट गोल्ड के ऊपर कोई कमाई नहीं होती है। लेकिन ये जो कागज वाला गोल्ड है, गोल्ड बॉन्ड है, उसके ऊपर गवर्नमेंट एवरी ईयर 2.5% इंटरेस्ट देता है। पहला 2.75 था, अब 2.5 है, भाव इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। दैट मीन्स वो कागज गोल्ड का गोल्ड है, प्लस वो कागज पर इंटरेस्ट है, डबल कमाई। सो यदि मैं वो गोल्ड बॉन्ड 10 साल तक रखता हूं तो 25% 10 साल में तो इंटरेस्ट ही मिल गया, गोल्ड तो है ही सलामत। सो दैट वे एज ए इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं मैं, एज ए इन्वेस्टमेंट बोलता हूं। तो बिटवीन गोल्ड एंड गोल्ड बॉन्ड, समझदारी गोल्ड बॉन्ड में है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 20 लाख रुपया होना चाहिए गोल्ड बॉन्ड लेने के लिए। आप छोटे से 5,000 10,000 रुपए का भी जैसे जैसे है आप इन्वेस्टमेंट करते जा सकते हैं। सो लॉन्ग पीरियड के लिए एटलीस्ट एक पेपर वाला गोल्ड बॉन्ड में रेगुलर इन्वेस्ट करो। सपोज लेडीज मेंबर पहनने के लिए जो ज्वेलरी ले रहे हैं उसे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूं। ऐसा मत बोलना बुरे वक्त पर काम आएगा। क्या काम आएगा? बेचने जाएगा तो आधा तो पैसा वैसे ही कट जाएगा, बोलेगा ये मिक्स वाला है ना, इसमें पत्थर है ना, स्टोन है ना, सोना अच्छा नहीं है। सो ज्वेलरी नहीं लेना, ऐसा नहीं बोलता हूँ। ज्वेलरी लेना चाहिए, भारतीय नारी ज्वेलरी तो लेना चाहिए, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट मत समझना। टेक इट एज ए ज्वेलरी, वेयर इट एंड यूज इट, डोंट पुट इन द कपबोर्ड। बट इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है गोल्ड बॉन्ड। सपोज बच्चा पैदा होते ही आप उसकी शादी के लिए, लड़की या लड़के की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा गोल्ड बॉन्ड लेते जाते हैं ना, तो हमारे लिए क्या होगा? 25 साल के बाद जब रियली में गोल्ड लगेगा ना, कागज देके गोल्ड में बदली कर लो, एंड इन बिटवीन 25 इयर्स आपने ऑलरेडी बहुत सारा इंटरेस्ट कमा लिया है। सो लॉन्ग पीरियड के लिए समझदारी गोल्ड बॉन्ड में है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए। दूसरा, अब क्वेश्चन है घर, घर में इन्वेस्टमेंट करो कि ना करो। तो एटलीस्ट मुंबई में, इंडिया में, भारत में एक खुद का घर होना चाहिए, मैं खुद मानता हूं। हाँ, लेकिन सपोज अपना घर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमको लोन लेके घर लेना पड़ेगा, तो हमारी जो इनकम लेवल है उसमें तो घर लेना बहुत मुश्किल है। 1 बेडरूम हॉल किचन मुंबई में 60, 70, 80 लाख 1 करोड़ मिलता है, वो भी सबब में। तो जब जैसे ही बट हस्बैंड वाइफ की फैमिली इनकम, कंबाइन इनकम 1.5 लाख होती है, और यदि उनका घर नहीं है तो पक्का एक घर लेके लोन लेना चाहिए। घर लोन पर लेने पर इंटरेस्ट कितना लगता है? एवरी 1 लाख का लोन लेता हूँ ना, 1 लाख की लोन लिया, रफली 850 रुपीज पर मंथ का इंस्टॉलमेंट होता है। मतलब 50 लाख की मैंने लोन लिया, 50 लाख की रफली मेरा 42,500 इंटरेस्ट आएगा। तभी तो मैंने बोला हस्बैंड वाइफ की 1.5 लाख कंबाइन इनकम है, तो 50 लाख रुपए की लोन लेके 42,500 इंटरेस्ट देके, मतलब इंस्टॉलमेंट 20 साल पर देके, वो बाकी का 1 लाख में से घर खर्च कर सकते हैं। अच्छा, लोन लेने से फायदा क्या है? मैंने पहले ही बोला,
हम तो 20 साल तक वही ईएमआई भरने वाला है, इंस्टॉलमेंट 42,400। सो 5 साल तक जो मुझे 42,400 भारी लग रहा है, सडनली 5 साल के बाद जब मेरा सैलरी बढ़ता है, मेरा बिजनेस इनकम बढ़ता है, मेरी मनी इनकम बढ़ता है ना, तो 42,500 का इंस्टॉलमेंट बहुत छोटा लगता है। सो इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड में आप मैक्सिमम पीरियड की लोन लेना। मैं तो 20 साल तो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई कोई बैंक 30 इयर्स भी देती है, तो 30 इयर्स ले लो। 30 इयर्स की लोन पर आपको खाली 600 रुपीज का इंस्टॉलमेंट आएगा, 50 लाख पर खाली 30,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट आएगा। तो 30,000 इज अ स्मॉल अमाउंट टू बी पेड आउट ऑफ इवन 1,70,000-80,000 का सैलरी। बाकी में से घर का चल सकता है। 5 साल के बाद भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 30,000 रहेगा। हमारी इनकम बढ़ जाएगी। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है, आप चाहे तो जल्दी फटाफट लोन पे कर दो। सो भले हमने स्टार्टिंग में 30 साल के लिए लोन लिया है, हो सकता है हम 12-13 साल में पे कर दें। दूसरी बात, इंटरेस्ट पर टैक्स का फायदा होता है। हम जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं उसको भी एटीसी में टैक्स सेविंग माना जाता है। सो हमारे को एक घर लेना ही चाहिए। मैं मानता हूं स्टार्टिंग में इनकम कम है, नो प्रॉब्लम, बट जैसी फैमिली इनकम 70-80 हजार की हो जाती है, एक घर पक्का लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्या मेरे पास अपना तो एक घर है, थोड़े कुछ पैसे भी बचे हैं, अब दूसरा घर एज ए इन्वेस्टमेंट ले लूं? अब ये समस्या स्टार्ट हो जाएगी कि क्या रियल एस्टेट को हम इन्वेस्टमेंट माने। देखो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अनलिमिटेड मनी है, 25-50 करोड़ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लिमिटेड मनी है, तो एज ए इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कुछ समस्या है। पहला पॉइंट, वी नीड बिग मनी फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा, रियल एस्टेट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ 25-30 ईयर्स। हो सकता है 10 साल के अंदर तो कुछ भाव बढ़े ही नहीं। देखो ना, 2010-8 के अंदर जो भाव था, अभी भी 2008 में जो रेट चलता था 2020 में वही रेट है। दैट मींस 12 साल हो गया, भाव नहीं बढ़ा है। हो सकता है बाकी का 10-20 साल में बढ़ जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज ओनली ओवर अ लॉन्ग पीरियड रेट बढ़ता है। दूसरा, इंडिया में रियल एस्टेट हम जब भाड़े पर देते हैं, टेनेंट फाइंड करना, अच्छा कस्टमर फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि रियल एस्टेट भाड़े पर देने पर हर मंथ अपने को चेक का इंतजार करना पड़ता है, वो टेनेंट टाइम पर देगा कि नहीं देगा, उसका चेक पास हो जाएगा कि बाउंस हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, मुझे उसे खाली करवाना है तो भी एक दूसरा होता है। चौथा पॉइंट, मुझे उसे बेचने जाना है, तब हो सकता है कोई कस्टमर ही ना मिले, या मुझे जो भाव चाहिए वो ना मिले। सो रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट कुछ समस्या पैदा होता है। बट इफ वी हैव गॉट मोर मनी, तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ द मनी कैन बी पुट इन द रियल एस्टेट इवन एज ए इन्वेस्टमेंट। समझो 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली आई डोंट माइंड टू पुट 2-3 करोड़ इन द रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, वो पॉसिबल है। बट यदि 1-2 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो फिर मेरे पास एक घर अपना खुद का होना चाहिए, बाकी के लिए फिर शायद रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है मेरा, जो 20 साल 25 साल 30 साल तक बच्चे के एजुकेशन के लिए किया है, बच्चे की शादी के लिए किया है, हमारा रिटायरमेंट के लिए है, वो पैसा विड्रॉ कब करना चाहिए। इनफैक्ट शेयर मार्केट में आपको बहुत लोग आपको टिप्स देंगे, सलाह देंगे कि पैसा इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा टाइम है एंड ऑल, बट मैंने आज तक जितनी भी टिप सुनी है, वो टिप में मुझे शेयर कब खरीदना चाहिए वही इन्वेस्टमेंट की टिप मिली है। आज तक लाइफ में मुझे किसी ने नहीं बोला है अरे शेयर बेच दे, मतलब बेचने का कब, वो तो कोई बताता ही नहीं है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया है, मेडिकल एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, चिल्ड्रन मैरिज के लिए, वो पैसा निकालना कब चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, खास समझ के रखना। सबसे पहले हमने अपनी असेट को डाइवर्सिफाई किया है, एक ही जगह पर सब पैसा नहीं लगाया है। इफ द स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल टू बी मेट, लाइक चिल्ड्रन मैरिज, children higher education, withdraw money 12 to 24 months in monthly installment, never in one lump sum। मतलब क्या, सपोज अपने को बच्चे को पढ़ने के लिए 2 साल के बाद पैसा लगना है, 2 साल के बाद, तो आज से ही से एग्जांपल 24 महीने के इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करना स्टार्ट करो। सपोज अपनी बेटी की शादी 2-3 साल के बाद करनी है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट निकालना स्टार्ट करो। सो जैसे पैसे हम इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं, विड्रॉवल भी कम से कम 24 महीने के पहले इंस्टॉलमेंट में करना स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी को
अभी अगस्त मंथ में अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए अब्रोड भेजना था आज की डेट में, तो पता है आज की डेट में मुझे अब्रोड भेजना था तो शेयर मार्केट तो डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। बट यदि मैंने लास्ट 2 साल के अंदर पैसा थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालना स्टार्ट किया होता था, तो बाद में शेयर मार्केट डूबी जाती है तो हमारा नुकसान भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है। सो याद रखना अपने को 12 to 24 मंथ के इंस्टॉलमेंट में, 24 मंथ इज अ गुड टाइम रादर देन 12 मंथ, थोड़ा कम टाइम है। अपने को जब पैसा चाहिए उसके पहले से पैसा निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करना है, बेचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। टैक्स प्लानिंग में समय भी 1 घंटा तो हो गया है मेरा, तो मैं ज्यादा नहीं बताएगा, मैं खाली इतनी बात बताता हूं कि जो मैं पैसा कमाता हूं इन्वेस्टमेंट पर उसका भी प्लानिंग करना है, और जो मेरी नॉर्मल इनकम है, बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, उसका भी रेगुलर प्लानिंग करना है। तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो जिस प्रकार हमको बताए वैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कुछ प्रकार की इनकम पर टैक्स कम लगता है, कुछ प्रकार की इनकम पर रेगुलर टैक्स लगता है। जैसे डिविडेंड पर टैक्स शायद कम लग सकता है, हमारा शेयर्स और इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लगता है, 3 साल के अंदर बेचेंगे तो शायद ज्यादा टैक्स लगेगा, बाद में कम लगेगा। तो इन शॉर्ट एक लाइन में मैं अभी खाली इतना बताता हूं कि हमको प्रॉपर टैक्स का प्लानिंग करना है। जैसे मैं हाउसिंग लोन लेता हूं तो इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, मैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करता हूं, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं तो उसका मुझे फायदा होता है, मैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचता हूं, शेयर्स बेचता हूं तो टैक्स कम लगता है, फायदा होता है। तो टैक्स का एंगल आपको ध्यान रखना है। छठा स्टेप रिटायरमेंट प्लान, ये मैं अलग से बात नहीं करता हूं, क्योंकि जब मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की ना, 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिटायरमेंट प्लान हो जाता है। लेकिन सपोज किसी ने अभी तक कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाया है तो आप बना दो। सपोज हमारा कोई प्लान नहीं बना है तो आज के बाद ही देखो ना मुझे पैसा कितना लगेगा। यदि मेरी उम्र ही 60 इयर्स है तो मुझे 20 साल का प्लानिंग करना है, मेरी उम्र 40 साल है तो 30 साल का प्लानिंग करना है, एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 80 इयर्स मुझे प्लानिंग करना होता है। एक बात मैं बताता हूं, इफ देखो कंसीडर योर प्रेजेंट एज एंड नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट टिल द एज ऑफ 60, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं अप टू 60 इयर्स कमाएंगे, बाद में हम काम करना, एक्टिव काम करना बंद करेंगे। इफ यू आर नॉट प्लान एनी अर्लियर रिटायरमेंट, स्टार्ट फ्रेश बेस्ड ऑन कितना साल बाकी है कमाने का और कितना साल 80, 85, 90 इयर्स जीने वाले हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करो। इफ पॉसिबल थिंक ऑफ क्रिएटिव पैसिव इनकम लाइक रॉयल्टी, ऑनलाइन एजुकेशन। देखो अभी ऑनलाइन तो सब समझ ही गए, लॉकडाउन ने सबको सिखा दिया है, ऑनलाइन सिखाना भी सिखा दिया है, ऑनलाइन सीखने का भी सिखा दिया है। आप गूगल पर सर्च करो, ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करो, दुनिया भर के लोग दुनिया भर का कोर्सेस ऑनलाइन बेचने चालू किया, 500 रुपया, 1000 रुपया एंड सो ऑन। आप खाली टाइप करेंगे ना योगा ऑनलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर के बाद करना, योगा ऑनलाइन टाइप करेंगे ना, 500 रुपया फीस है कोर्स का, वो आदमी ने 3 लाख कोर्स बेचा है, 3 लाख कस्टमर है, 15 करोड़ रुपीस कमाया है, 1 साल में नहीं 8 साल में। अरे 8 साल में भी 15 करोड़ रुपया खाली योगा बेच के कमाया है, तो क्या जाता है 500 रुपए में। यदि तुम्हारे में से खाना बनाना आता है, 5-6 अलग अलग आइटम बना के कोर्स बना के बेच डालो ऑनलाइन, जो बिका वो बेचा। सो इन शॉर्ट ऑनलाइन एजुकेशन से भी आप पैसा कमा सकते हैं, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। यू विल गेट द इनकम इन लाइफ टाइम। तो ऐसे रॉयल्टी कुछ ऑनलाइन इनकम कमा सकते हैं, तो सोचिए आप। Do consider investment in national pension scheme if not entitled to pension। जो बिजनेसमैन है जिसको गवर्नमेंट कोई पेंशन नहीं देने वाली है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा पेंशन स्कीम में डाले तो रिटायरमेंट के बाद मंथली पैसा इनकम आने की स्कोप है। रिवर्स मोर्टगेज इन केस ऑफ ए लास्ट ऑल्टरनेटिव, ये इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं बताता हूं ये किसके लिए, ध्यान से सुनना। जिसकी उम्र अबव 60 इयर्स है, नंबर 1 मतलब सीनियर सिटीजन, उनके पास अच्छा घर है, से 2 बेडरूम हॉल किचन, आज की वैल्यू 2 करोड़ है, और या तो उनके बच्चे लोग भी नहीं है, या तो बच्चे लोग है लेकिन पेरेंट्स को संभालते नहीं है, या तो बच्चे लोग पेरेंट्स को संभालने के लिए भी रेडी है लेकिन पेरेंट अपनी खुद की कमाई पर जीना चाहता है, वो बच्ची की कमाई पर नहीं डिपेंड रहना चाहता है, तो उनके लिए रिवर्स मॉर्टगेज है। सुनना, सो एक कपल है, रिटायर्ड कपल है, सीनियर सिटीजन है, उसके पास 2 बेडरूम हॉल का किचन है, का फ्लैट है जिसकी कीमत है 2 करोड़ और कोई इनकम नहीं है। वो बैंक में जाता है 60 इयर्स के बाद, समझो उसकी उम्र 65 साल है, 65। बैंक वाले को बोलता है देखो मेरे पास फ्लैट है, आप पैसा दो, अपने को फ्लैट बेचना नहीं है। तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है, तुमको घर खर्च के लिए कितना पैसा लगता है? वो कपल बोलता है 40,000 रुपया लगता है एवरी मंथ, और तो कोई खर्चा है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा।
तो बैंक उसे एवरी मंथ 40,000 दे देगी। सो 12 महीने में कितना हो गया? 4,80,000। बैंक इंटरेस्ट भी लेगी, बट वो कपल को बैंक को अभी कुछ नहीं देना है। सो 4,80,000 बैंक ने दिया, प्लस इंटरेस्ट ऐड करेगा, और कपल और 20 साल तक रहता है। पता है, एक साल में बैंक ने हमारे से 4,80,000 दिया, प्लस इंटरेस्ट लगा के बैंक का 6 लाख हो गया। 20 साल पकड़ लो, इंटरेस्ट जोड़ के बैंक ने हमें 2 करोड़ रुपया दे दिया है। मतलब वी हैव टू पे बैंक 2 करोड़ रुपीस। वी आर द ओल्डर एल्डरली कपल। मैंने 65 इयर्स की उम्र में बैंक से 50,000 रुपया, 40,000 रुपया एवरी मंथ लेना स्टार्ट किया था। मैंने बैंक को कुछ भी नहीं चुकाया है अभी तक, और मैं हस्बैंड वाइफ 20 साल तक रहता है, बाद में एक के बाद एक एक्सपायर हो जाता है। और 20 साल में बैंक ने जो हमें पैसा दिया है प्लस इंटरेस्ट सब मिलकर 2 करोड़ बैंक हैज टू टेक फ्रॉम अस। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? हमारे लीगल हेल्प को बुलाता है और पूछता है कि देखो भाई, बैंक बोलती है हमें 2 करोड़ रुपीस लेना है, आप 2 करोड़ दे दो हमें और फ्लैट अपना ले जाओ। और बैंक बोलती है ये फ्लैट का आज का मार्केट भाव तो 5 करोड़ है, क्योंकि 2 करोड़ वैल्यू तो 20 साल पहले थी ना। बैंक बोलती है आज का वैल्यू 5 करोड़ है, अब 2 करोड़ हमें देके फ्लैट ले लो, और हम ये फ्लैट 5 करोड़ में बेच डालते हैं। 2 करोड़ बैंक बोलते हैं मेरा निकलता है, वो ले लेता हूँ, और 3 करोड़ आपको लीगल हेयर को दे देता हूँ। मैटर एंडेड। सो या तो हमारे लीगल हेयर पैसा देके बैंक को फ्लैट ले लेंगे, या तो बैंक फ्लैट के अपना निकाल के लीगल हेयर को पैसा दे देंगे। बैंक कोई फ्लैट का कब्जा नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं है। देखो, एल्डरली कपल अपनी खुददारी पर है, लीगल हेल्प को भी 20 साल तक कोई पिंच नहीं आया, और बाद में उनके पास पैसा है तो देके फ्लैट ले लेंगे, या तो फ्लैट बेच के रोकड़ा पैसा ले लेंगे। सो उसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज, बट हम इंडिया में इसे एज ए लास्ट ऑप्शन बात करेंगे। ऑलराइट, सेवंथ एंड द लास्ट प्लान, एन इन्वेस्टर नो मैटर हाउ ओल्ड or young, he should have a will. If you don't have the document record with your nominee or legal heir, they might face a lot of trouble getting their money back. In such case, the investment becomes worthless. मतलब कि आदमी छोटा है या बड़ा है, कमाता है या नहीं कमाता है, यदि उसकी कोई इनकम है, कोई प्रॉपर्टी है, विल मतलब एक सिंपल कागज में लिख के जाना है कि भाई मेरे बाद ये जो भी इन्वेस्टमेंट है, घर है, इसका मालिक कौन बनेगा। ये करने का फायदा ये होगा कि लीगल हेयर के पास डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लीगल हेयर के बीच में फाइटिंग भी नहीं होगी, और हमारा पैसा कहीं अड़ न जाए, अटक ना जाए। देखो, हम बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे ताकि हमारे पीछे वाले को तकलीफ ना पड़े, और जब हम चाहते हैं तकलीफ ना पड़े तो समझदारी तो इसी में है कि प्रॉपर से विल मतलब कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सिंपल कागज पर लिख के जाना है कि भाई हमारे बाद ये पैसा किसे मिले। तो ये हमारा 7वां और आखिरी स्टेप था। सो पहला था क्या? इमरजेंसी फंड, दूसरा था लोन मैनेजमेंट, तीसरा था इंश्योरेंस, चौथा था इन्वेस्टमेंट, 5वां था टैक्स प्लानिंग, 6वां था रिटायरमेंट, 7वां है एस्टेट प्लानिंग। अब कुछ और बातें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक पासिंग रेफरेंस पर बात करते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर लेगा। देखो, मुझे 30 साल तक पैसा जमा करना है लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म है तो 10 साल के लिए भी करना है, लॉन्ग टर्म है तो 30 तो क्या 40-50 साल। तो समझदारी तो इसी में है, एवरी मंथ जो भी हम कुछ पैसा मिले, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो। सपोज कुछ पैसा गोल्ड बॉन्ड में डालना है, डालो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, शेयर मार्केट में। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए है तो हम शेयर वाले म्यूचुअल फंड में नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर्स वाले में लेंगे। बट पॉइंट ये है कि एवरी मंथ सिस्टमेटिकली हमको कुछ पैसे की बचत करनी है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उससे फायदा ये हो जाता है हमारे में कंपल्सरीली हैबिट हो जाएगी सेविंग करने में, और हमको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड दिमाग लगाएगी किस कंपनी का शेयर्स खरीदना है। अच्छा, इससे फायदा ये होगा, मार्केट बहुत बढ़ गई है, शेयर महंगे हैं, ठीक है, कम शेयर्स आएंगे, बट मार्केट अभी जैसे घट गई है, सेम मनी में ज्यादा शेयर्स आएंगे। सो मैं तो 25-30 साल की बात कर रहा हूं, तो हमारे को एवरेज हो जाता है और हमारा पैसे सलामत रहता है। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से क्या फायदा होता है, हमारे में सेविंग इन्वेस्टमेंट हैबिट होती है। हमको ये नहीं सोचना है पैसा शेयर मार्केट में कब लगाना है, नहीं लगाना है, लगाना ही है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हमारा पैसा डबल 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 होते जा रहा है, भाव घटता है, कम होता है, तो हमको एवरेज कॉस्टिंग का फायदा मिलता है, और हमारे को कोई बार बार डॉक्यूमेंट भी नहीं करना पड़ता है, खाली एक बार फॉर्म भर देना है, सिग्नेचर करके हमारे जो ब्रोकर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, दे देना है, बाद में एवरी मंथ ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसा चला जाएगा। इनफैक्ट आपको पिंच भी नहीं होएगा। यदि वो छोटा सा अमाउंट है, 2,000, 5,000, 10-20,000 डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा जमा होते जा रहा है। आप अभी देखिए, सपोज मैं पैसा लगाता हूं और मेरा इन्वेस्टमेंट
12% कमाती है, तो देखो कितना पैसा हो जाता है। मैं एवरी मंथ 5,000 रुपीज लगाता हूं और 5 साल ऐसा एवरी मंथ 5,000 रेगुलरली 5 साल में 4 लाख हो जाता है। यदि एवरी मंथ 5,000 लगाता हूं तो मेरा ये देखो 15 साल में 25 लाख हो जाता है। मैं एवरी मंथ 5,000 रुपीज लगाता हूं तो 25 साल में मेरा पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाता है। So you can depend a smallest investment of 5,000 जितनी जल्दी उम्र में स्टार्ट करते हैं उतना बड़ा सा पैसा हो जाता है। मैं तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया एवरी मंथ 5,000, मैं रियल में ऐसा नहीं करना है। क्या करना है पता है? चलो अभी मैं ग्रेजुएट हो गया, 40-50 हजार 30,000 की कमाई हो गई, मैं 5,000 रुपया बचत करता हूँ। बाद में पता है हमारी इनकम एवरी ईयर बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो जैसे जैसे बढ़ती है ना हमारा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। जैसे पहले ईयर में मैं 5,000 एवरी मंथ करता हूँ, दूसरे साल क्या करता हूँ 10% बढ़ा देता हूँ, 5,500 एवरी मंथ करता हूँ। जब तीसरे साल क्या हो गया और 10% बढ़ा देगा, 5,500 का 10% 6,050 एवरी ईयर करता हूँ। ऐसे 25-30 साल तक करते हैं तो हमारे पास 4 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। कितना? 4 करोड़। हमने खाली 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। बाय द टाइम आई रिटायर इट विल बी मोर देन 4 करोड़। अब देखिए ये एक रूपी कॉस्ट एडवांटेज है, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं स्किप कर देता हूं। ये देखते हैं, एक आदमी है उसने एवरी मंथ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उसकी उम्र 25 साल है, ठीक है? मतलब कि तुम्हारे में से कोई सुनने वाले 25 साल का एवरी मंथ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। उसने 12% हुई नॉर्मल इंटरेस्ट कमाया है और अप टू द एज ऑफ 60 6.5 करोड़ रुपया हो जाता है। सुनना, उसने 10,000 रुपए एवरी मंथ लगाया है, फिक्स लगाया है, 25 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया है। बाय द टाइम ही रिटायर एट द एज ऑफ 60 6.5 करोड़ हो गया। उसी का दोस्त, उसने जवानी में बहुत मजा किया, मोटर गाड़ी भी खरीदा ना, आईफोन भी खरीदा, तो उसके पास तो इन्वेस्टमेंट करने के पैसे ही नहीं थे। उसको ये जब ज्ञान आया, मेरा लेक्चर सुना, तब तक उसकी उम्र 40 साल हो गई। फिर उसने 40 साल में 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना था। वो दोनों 60 ईयर्स में रिटायर होंगे। अब देखो, पहले साल भाई साहब ने तो जल्दी जल्दी पैसा स्टार्ट किया था ना, तो उसका तो 42 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब एवरी ईयर कितना 10,000 रुपए एवरी मंथ, एक साल का 1,20,000। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट खुद का 42 लाख किया तो 6.5 करोड़ मिला। दूसरे भाई साहब ने तो लेट स्टार्ट किया, उसका खुद का खाली 24 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट आदमी से सेकंड आदमी ने कितना पैसा कमती इन्वेस्टमेंट किया पता है? 18 लाख। इसने 42 इन्वेस्टमेंट किया, इसने 24। ये भाई साहब ने 18 लाख कमती इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन ये भाई साहब ने क्योंकि 40 साल में किया, उसको खाली 20 साल ऐसा पैसा कमाने मिला, तो उसके पास खाली 1 करोड़ रुपया जमा हुआ और इसके पास 6.5 करोड़। दैट मीन्स ये भाई साहब ने खाली 18 लाख कम इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी कमाई 5.5 करोड़ कम है। और ये भाई साहब ने इससे 18 लाख ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो इसके पास 6.5 करोड़ एक्स्ट्रा है, टोटल 5.5 करोड़ एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसने जल्दी जल्दी पैसा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। सो मोरल ऑफ द स्टडी, ये देखो लाल कलर में लिखा है, 3 गोल्डन रूल फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्ट अर्ली, जितनी छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना करो। हर तुमको पहली नौकरी लगी, पहला बिजनेस स्टार्ट किया, पहले कमाया, वहां से इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। Real life case study. Before I end up and take up your question, actual case study बताता हूं। ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूलिप का ये रियल केस स्टडी है। अब देखना, 91 में हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 10 साल तक किया है। कितना? खाली 3,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 की पॉलिसी है, मतलब 250 रुपीज पर मंथ। ऐसा मैंने, ये मेरा खुद का है, 10 साल इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 10 साल में 30,000 हो गया। 2001 में पैसा वापस चाहिए तो मिल सकता था, मुझे उस वक्त 30,000 की कुछ जरूरत थी, मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं जरूरत थी ना 30,000 स्मॉल अमाउंट। तो देखो ये अभी लेटेस्ट देखिए, डेट देखना 31 मार्च 2020, लास्ट लाइन दिखाई दी। अभी भी ये यूलिप ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मेरी इन्वेस्टमेंट जिंदा है। 31 मार्च 20, भले शेयर मार्केट गिर गया फिर भी 22 रुपीज 41 पैसे पर यूनिट है। आज मेरा कितना पैसा जमा है उधर देखो, लास्ट लाइन 3,02,534। लेटेस्ट स्टेटमेंट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मैंने खाली 250 रुपीज पर मंथ, 3,000 पर ईयर इन्वेस्टमेंट किया था। 10 साल ही इन्वेस्टमेंट किया, फिर मैं भूल गया, कुछ नहीं किया, मेरा पैसा बढ़ के 3 लाख हो गया। और एक देखो ये कितने में समय में हुआ है, देखिए डेट देखना, मैंने डेट बताया था ना, 91 में भरना स्टार्ट किया था 3,000 एवरी ईयर, 2001 भरा,
बस 2001 के बाद नहीं बताए तो 20 साल में देखो मेरा पैसा कितना बढ़ गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सेम दूसरा, ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है। देखो क्या हुआ, मैंने 99 में 4,500 4,500 पर मंथ भरना पड़ा, मैंने 9 इंस्टॉलमेंट ही भरा 10 के बदले, मालूम नहीं है क्यों। एनीवे 2009 के बाद मैंने पैसा भरना बंद कर दिया, मतलब मैंने 40,500 भरा, 2009 के बाद भरना बंद किया है। यहाँ अब मेरा कितना यूनिट जमा हो गया, 8,000। आज का भाव 31 मार्च, अभी वाला भाव 6 बजे गिरने के बाद 22.41 है, और मेरा 179 1,80,000 रुपया जमा हो गया है। सो 40,000 का हो गया 1,80,000 12-13 साल में। और जो पहले वाला एग्जाम्पल था उधर 20 साल के ऊपर था, वहां मेरा 30,000 का हो गया 3 लाख रुपया। सो आप समझ सकते हैं दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 5 लाख हो गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप छोटा छोटा अमाउंट स्टार्ट करो, it will become a big money. Even a smallest investment will become a big money. All right, so with that, do something today that your future self will thank you for. आप कुछ अपने लिए कुछ करो, so that your future self will thank you for. Thank you for listening me patiently. क्योंकि मुझे as far as possible 45 मिनट्स के अंदर पूरा करना था, तो थोड़ा मैं फास्ट गया, थोड़ा स्लो जाता था तो और अच्छी तरह से कर सकते थे, बट देन द टाइम वुड हैव बीन मिनिमम 1.5 आवर। अब मैं आपका कुछ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, अपना क्वेश्चंस जो है मैं लेने के लिए तैयार हूं। मेरे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं पहला चैट रूम में करता हूं, अभी तक आप म्यूट है, बाद में मैं आपको अनम्यूट भी करेगा। पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, मैंने एज फार एज पॉसिबल फास्ट आने की कोशिश की है। नॉट एबल टू हियर, आई थिंक सो, अभी तो वो समस्या नहीं थी, स्टार्टिंग में यूट्यूब का इश्यू था, बट मैंने वो लिंक क्लोज कर दी थी बाद में। बट आई टेक योर क्वेश्चन। सर आई एम 23 years old, आई डू इन्वेस्ट फ्रॉम 21 years एज। बहुत अच्छी बात है वो तो। स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन, वीडियो इज पुशिंग। Sir, I have a question. If stock market knowledge not have, then can we buy Nifty Bs and Gold Bs? अपने को स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना है। आप गोल्ड बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, या तो गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड है उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डिपेंडिंग अपॉन योर एज, बॉन्ड फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड में पैसा डालो। अपने को न कभी लाइफ में शेयर मार्केट देखनी है, न उसकी चिंता करनी है। कैन वी बाय डॉलर एज एन इन्वेस्टमेंट? आप डॉलर रोकड़ा नहीं ले सकते, इलीगल है, बट आप डॉलर वाले म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। डॉलर खुद रखना ही अलाउड नहीं है, लेकिन डॉलर के पीछे का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ले सकते हैं। बट 25-30 इयर्स तक डॉलर नहीं होगा। डॉलर में पैसा डालना इज अ स्पेक्यूलेशन। हम अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पर अपने को एक व्हाट यू कॉल अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, तो आप डॉलर खरीद के बेच सकते हैं। आप कमोडिटी एक्सचेंज में डॉलर खरीद के बेच सकते हैं, यस, यदि आपको करना है, बट उसे इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले पैसे से मत करना। लेकिन इफ स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है तो बता दिया ना, चिंता करनी ही नहीं है। यस, निफ्टी यू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, निफ्टी वगैरह, निफ्टी बोलो या सेंसेक्स बोलो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। द आंसर इज यस। निफ्टी वाले म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द पीरियड वी कैन मैक्सिमम इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई मैक्सिमम रूल नहीं है कि 10 साल 15 साल। बहुत सारे फंड है वो कंटिन्यूअस फंड है, उसमें कोई एंडिंग नहीं है। आप अभी आ जाओ, जब भी पैसा चाहिए ले लो, बट हमको 25 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स तक नहीं लेना है। कुछ फंड स्पेसिफिक पीरियड के भी होते हैं। कैन वी बाय डॉलर एज एन इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज नो। स्पेक्यूलेशन यस। बाय इंक्रीजिंग द एज शिफ्ट इक्विटी टू डेट, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, हमारा एक्सपोजर इक्विटी में से थोड़ा घटाते जाना है। यस, मैंने बोला ना 100 माइनस अपनी एज, बिल्कुल यस। प्लीज चेक योर रिस्क प्रोफाइल बिफोर योर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था ना कि हमको इन्वेस्ट, देखो ये जो मैंने बताया वो जनरल है, इसमें से आपको तो खाली जनरल आइडिया लेनी है। बाद में ये हेल्थ चेकअप जैसा हो गया, बाद में कैसे अपन डॉक्टर से सलाह लेनी है, वैसे फाइनेंशियल डॉक्टर से अपना प्लान बनवाना है कि भले दो आदमी है, दोनों 1-1 लाख रुपए इक्वल कमाते हैं, सेम कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों की फैमिली वेल्थ अलग है, तो इसके लिए दोनों का फाइनेंशियल प्लान अलग बनेगा। हर फाइनेंशियल प्लान उसी के लिए बनता है। डॉलर थ्रू एक्सपेंस बट इट विल हेल्प यू इन एज, वही डॉलर अब टेम्पररी पीरियड के लिए होता है डॉलर को। व्हाट अबाउट गोल्ड? बीस वर्ड क्या है? गोल्ड बॉन्ड
everyone should invest at least 10% in index mutual fund. बात सही है ना? हमको देखो सब इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना है ना, डेफिनेटली यस. सो सम पार्ट ऑफ मनी शेयर बाजार में भी वाया म्यूचुअल फंड होगा, सम इंडेक्स बेस्ड फंड होगा, अलग अलग जात का म्यूचुअल फंड आता है. दैट्स ट्रू. बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, कितना टाइम अवेलेबल है, तभी तो मुझे फाइनेंशियल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है. कैन वी इन्वेस्ट डायरेक्टली निफ्टी 50? कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं. फॉर ETF यू शुड हैव डीमेट अकाउंट. देखो डीमेट अकाउंट ऑलमोस्ट कंपलसरी है, खाली शेयर मार्केट के लिए नहीं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इवन अभी इंश्योरेंस पॉलिसी भी डीमेट में आएगी, तो वर्चुअली हमारे पास 2 बैंक अकाउंट हो ही जाएंगे. एक करेंसी रुपये का बैंक अकाउंट, दूसरा एक जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं. सब इन्वेस्टमेंट, सब फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली डीमेट अकाउंट में जाएगा. और डीमेट अकाउंट खोलना कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, कोई भी बैंक में जाके खोल सकते हैं. डीमेट अकाउंट तो लगेगा ही लगेगा. Buy only direct mutual fund as expense ratio is lower. देखो आपको म्यूचुअल फंड में लेना है, अब अपने को ये चूज करना है कि मैं डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड में ले सकता हूँ, ऑनलाइन से भी म्यूचुअल फंड में ले सकता हूँ, ब्रोकर से भी म्यूचुअल फंड में ले सकता हूँ. अब म्यूचुअल फंड भी तो 100 जात का है. यदि आप में एक्सपर्टाइज है, खुद ही डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में कर दो. बट हमको एक्सपर्टाइज नहीं है तो ज्यादा चिंता नहीं करना है. सपोज हमको बुखार है तो क्रोसिन ले लेंगे, गंभीर बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना. वैसे हमारा सीरियस इन्वेस्टमेंट है तो जो सर्टिफाइड वेल्थ प्लानर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, बेटर टू गो विद देम. दे विल गिव यू बेटर एडवाइस. खुद कर सकते हैं. लेकिन इज नाउ एग्रीकल्चरल लैंड, नॉर्मल लैंड इंक्रीज इन द वैल्यू. ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल लैंड इज लेकिन नॉर्मली है ना, हम लोग कोई आज नया लैंड नहीं खरीदते हैं, बट हमारी जो पुरखों की लैंड चली आती है वही आता है. बट एग्रीकल्चरल लैंड इज अ लैंड, वो एक रियल एस्टेट कैटेगरी में आएगा. क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आंसर यही है कि हमारे पास कितना पैसा डिस्पोजेबल है. यदि हमारे पास ज्यादा पैसा डिस्पोजेबल है, लैंड सस्ती मिलती है, हम 25-30 साल तक भूलने के लिए तैयार है, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बट वो एग्रीकल्चरल लैंड का इन्वेस्टमेंट विल बी ओवर 20, 30, 40 इयर्स ऑफ टाइम. जैसे 2007 में 2010 में तेजी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो लैंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल के बाद भाव बढ़ने के बदले में 50,000 हो गया है. लेकिन सपोज और 20 साल रहेगा ना, तो 1 का 3-4 हो जाएगा. सो इट इज ऑलवेज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 20, 30, 40 इयर्स. कर सकते हैं. आंसर है यस. इन इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. बहुत सारा फैक्टर ना, मैंने बोला ना. आधा सर एज पर योर विच लोकेशन इज गुड. अरे भाई एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ खरीदना है मैं नहीं बता सकता हूँ. आई एम फ्रॉम मुंबई एंड नेटिव प्लेस इन अहमदाबाद. देखो मैं एग्रीकल्चरल लैंड किधर सस्ती है मैंने कभी देखा नहीं है, सो आई कांट टेल यू. बट मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे घर वगैरह है, रियल एस्टेट है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास को हम टियर 1 सिटी बोलते हैं, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट को टियर 2 बोलते हैं, बाकी सब टियर 3 होता है. तो जो फ्यूचर स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन है 25 साल के बाद की मैं बात करता हूं, तो टियर 2, टियर 3 सिटी में बहुत ज्यादा होगा टियर 1 से. क्यों? सब कुछ ऑनलाइन है. एक जमाने में आज से 20 साल पहले रेलवे की टिकट लेने के लिए भी मुंबई आना पड़ता था ना, बैंक लोन के लिए भी मुंबई आना पड़ता था ना, पासपोर्ट के लिए भी मुंबई आना पड़ता था. आजकल अभी मुंबई नहीं आना पड़ता है, ये तो आज है. तो 25-30 साल के बाद तो टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटी, टियर 1 सिटी में डिफरेंस घटते जाएगा. तो परसेंटेज ऑफ जो गेन होता है वो टियर 2, टियर 3 सिटी में बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू टियर 1 सिटी. ये मैंने हाउसिंग वगैरह रियल एस्टेट का बताया. एग्रीकल्चरल लैंड आई डोंट नो कहां सस्ता महंगा है, तो आई एम नॉट द राइट वन टू आंसर. कॉन्टेक्ट रियल एस्टेट एजेंट. यस, वो भी रियल एस्टेट एजेंट, मुंबई वाले काम नहीं आएंगे. सीप अमाउंट बहुत अच्छा लिखा है कि हमको एवरी ईयर 10% सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़ाना चाहिए. बिल्कुल बढ़ाना चाहिए. मैंने वही तो बोला कि जब भी सपोज अभी मैं 5,000 रुपीज का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूं, क्योंकि मेरी इनकम 40,000 है, अगले साल मेरी इनकम महीने की 50,000 हो जाएगी, तो समझदारी है कि मेरे को 5,500 करना चाहिए. तभी तो मैंने बोला आप खाली 5,000 से स्टार्ट करेंगे ना, 10% बढ़ाते जाएंगे, इट विल बिकम मोर देन 5 करोड़ एट द एंड ऑफ द years. और कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज आई अनम्यूट. थैंक्स फॉर डिटेल्स. मैं थोड़ा फास्ट गया था. ऑलराइट. कैन आई इन्वेस्ट इन सेक्टोरियल फंड? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. एजुकेशन फंड, रियल एस्टेट फंड, फार्मा फंड कर सकते हैं. प्लीज अपलोड फुल सेशन ऑन यूट्यूब. शायद यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है क्योंकि ये लाइव है. इज रियल एस्टेट फ्लिपिंग गुड चॉइस? अरे रियल एस्टेट सनातन परमानेंट रहने वाली है. Temporary it will go up and down, but over a long period of 30 years it will always pay. But real estate as a investment अलग होता है, real estate as a use अलग होता है. हमने उसका दोनों का डिफरेंस देखा था.
we pay the deposit amount in the property, we take the mortgage, according to the we get a rent from the tenant. After few years my income increase. देखो हो सकता है आपकी इनकम कितनी, उनका भाई साहब का कहना है कि मैं एक घर पर रहता हूं, दूसरा घर लेके भाड़े पर देगा, मैं कुछ डिपॉजिट लेगा, फिर वो घर खरीदेगा, तो दैट मीन्स वहां रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट हो गया। आइडिया बुरा नहीं है, बट मैंने खाली एक ही प्रॉब्लम बताया कि आपके पास सिक्योरिटी ऑफ रेंट होनी चाहिए, मतलब कि श्योरिटी ऑफ रेंट होनी चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि जगह बाय चांस खाली हो गई ना तो आप खुद इंस्टॉलमेंट भरने की क्षमता रहनी चाहिए। यदि वो है तो कुछ बुरा आइडिया नहीं है। क्या बोला मैंने? एक घर तो अपना है, दूसरा घर लेके आप भाड़े पर देना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी लोन लेके लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है आपकी खुद की कमाई से नहीं निकले और खाली टेनेंट का भाड़े से देंगे तो आप अटक जाएंगे। वरना इट इज नॉट ए बैड आइडिया, बुरी आइडिया नहीं है, क्योंकि यू आर टेकिंग अ गुड लोन दैट टू appreciating asset, that way it is not a bad idea, but tenant को मैनेज करना is not a joke in India, legal document is not a joke, और जब बेचना चाहते हैं तब कस्टमर लाना is not a joke। सर मेरी उम्र 45 है, मेरे पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, बैंक बैलेंस नहीं है, बिजनेस में लॉस हुआ, वेरी सिंपल, जिसके पास 5-6 प्रॉपर्टी है, धंधे में कमाई नहीं है, समझदारी इसमें है, 1-2 प्रॉपर्टी के लिक्विड कर दो। अरे बहुत सिंपल बात करता हूं, सपोज जो मैं फ्लैट में रहता हूं वो 2 करोड़ का है और 1-2 करोड़ का फ्लैट भाड़े पर दिया है, यदि जो फ्लैट में रहता हूं रहने दो, दूसरा 2 करोड़ का फ्लैट जो भाड़े पर दिया है वो बेच डालता हूं ना, 2 करोड़ रुपया रोकड़ा आता है ना, उसको मैं बैंक में रखता हूं, साल का 15 लाख इंटरेस्ट आता है, मेरी भले उम्र 45 ईयर्स है, मुझे साल में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यही कि है ना, बीवी आपको ऐसा करने नहीं देंगी, तलाक की नोटिस दे देगी। अजमा के देखो, मैंने भी अजमाया था, सही बोल रहा हूं मैं, बट ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, समझदारी है उसमें। स्पेशली इफ यू गॉट मोर प्रॉपर्टी, धंधा लॉस में है तो टेंशन भी लेना है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना है, नींद में भी उड़ानी है, उससे अच्छा समझदारी इसमें 3-4 प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर दो, बिल्कुल समझदारी है। I've invested in CP in gold 9 years, बहुत अच्छा भाव है, कैन आई redeem now at this rate? देखो गोल्ड का भाव बहुत बड़ा है, बिल्कुल, बट आप उसमें से बेच के क्या करना चाहते हैं वो सब आंसर आपको देखना चाहिए। आप चाहे तो पार्ट ऑफ द गोल्ड रिडीम कर दे, शेयर्स थोड़ा सस्ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ असेट एलोकेशन, बिल्कुल कर सकते हैं, नॉट फुल बट पार्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट भारतीय एक्स इंश्योरेंस? सभी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, दे सेल डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, यू हैव टू सी व्हिच वन इज सुटेबल टू यू। लेकिन इफ इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस पक्का लेना, मैक्सिमम अमाउंट। If anyone wants to invest, we are here, प्रेरणा इन्वेस्टमेंट, हमारा वन ऑफ द यूर इज प्रेरणा इन्वेस्टमेंट। आप गूगल में से तपास कर लेना, आपको प्रेरणा इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। दे आर ए रेप्यूटेड एडवाइजर, आई बिलीव, बट आई डोंट नो देम, बट श्योरली आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडियन लोग फाइनेंशियल एडवाइस का पैसा देने में मानते नहीं है, ये तकलीफ है जो रियलिटी है। ऑन यूट्यूब इट इज there to complete session, so if you on YouTube it is not there complete session, मैंने अभी देखा नहीं, बट मेरे हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए, नहीं है तो मैं ये अपलोड कर देगा, ठीक है। प्लीज टेल समथिंग अबाउट डेप्ट म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन डेप्ट। अरे भाई डेप्ट मतलब लोन देना, मैं कंपनी को लोन दे रहा हूं, मुझे लिख के देता है भाई उस कंपनी ने मेरे से लोन लिया, वो डिबेंचर, वो कागज को डेप्ट बोलते हैं। वो लोन मैं डायरेक्टली भी दे सकता हूँ, वो लोन मैं वाया म्यूचुअल फंड दे सकता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले पेपर में आया, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने डेप्ट म्यूचुअल फंड 6 स्कीम बंद की। अब मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, वो म्यूचुअल फंड ने आगे बहुत सारी कंपनी को लोन दिया है, अब क्या हुआ, वो फंड बंद हो गया। मतलब जैसे जैसे वो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड को कंपनियों से रिकवरी आएगी, वैसे वैसे वो जो मालिक है, एक्चुअल इन्वेस्टर, उसमें वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका मीनिंग वो होता है जैसे जैसे पैसा म्यूचुअल फंड को वसूलिया है, वैसे वैसे हमें बांटते जाएंगे। What is your view on rental income on commercial property? आज की तारीख में रेंटल इनकम का जो यील्ड है, जो कमाई है, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 2.2% छूटता है, मतलब 2 रुपए का रिटर्न छूटता है। अपना इंटरेस्ट रेट की एंगल में बात करूं तो 2.5%, 2.5% रिटर्न छूटता है। Which shares to invest in? मैं कोई कंपनी स्पेसिफिक सलाह नहीं दे रहा हूं, यू कैन आस्क योर ब्रोकर कि कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैन यू गिव 5 बेस्ट स्टॉक? मैं नहीं बता सकता हूं, आई विल नाइदर इंटरेस्टेड इन, यू आस्क योर ब्रोकर। हाँ, शेयर मार्केट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट डालो, आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं, आस्क योर ब्रोकर, ही विल गिव यू एडवाइस, क्योंकि उनके वहां आपका अकाउंट है। और
आप सिस्टमेटिकली करना चाहते, म्यूचुअल फंड, हमारा ही फ्रेंड है अनुपम, स्टॉक ब्रोकिंग, प्रवीण गाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, भला आदमी है, ही विल एडवाइस यू। सर मेरी उम्र 24 साल है, रेंट के हाउस में रहता हूं एंड बिजनेस करता हूं, बट बिजनेस से हम बिजनेस कम ही निकाल पाता है, तो क्या करें, किसमें इन्वेस्ट करें? आपके पास पैसा ही कहाँ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? भाई साहब की उम्र 24 साल है, वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की कमाई नहीं है, तो क्या करें? आंसर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आपको धंधे में ही रहना है, तो आपको देखो क्या स्विच ओवर करना है, लॉकडाउन है, अपने को अपनी कमाई बढ़ाना है। आंसर इज इन वन लाइन, अपनी कमाई बढ़ाना है, अपनी कमाई बढ़ाना है। तो आपका क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का नहीं है, अपनी कमाई कैसे बढ़ाना है। कच्ची विसा ओसवाल समाज ने जस्ट 2-4 दिन पहले अमरीश छेड़ा का वेबिनार रखा था कि इस बदलते हुए समय में धंधे में कैसे क्या करना चाहिए। हमारा ही मित्र है संजय छाड़वा, एवरी मॉर्निंग 9:30 फेसबुक पर वो एडवाइस देते हैं धंधे वाले को क्या करना चाहिए, तो मैं एडवाइस देता हूं, प्लीज वॉच दैट। बट पॉइंट इन्वेस्टमेंट का नहीं है, पॉइंट है पढ़ाई, कमाई कैसे बढ़ाना है, दैट्स अ क्वेश्चन यू आस्किंग। तो राइट नाउ आई विल नॉट बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन इन द गिवन टाइम। वो भी आंसर कर सकता हूं, बट समय के हिसाब से नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं,